Good evening, everyone. Another day, another episode, and we bring to you tonight's special episode of ASEN because we are celebrating Women's Week today and for the next 1 week. And to start with, we'll have Dr. Anupama, dietitian Anupama. I'm so sorry, I'm such a dumb. It doesn't matter. Small things. We are there for bigger things. Just one sec before we welcome everyone. Right, so Sushil sir is there. Sir, good evening. Hello everyone. So today is going to be very exciting talk. We're going to discuss a lot of topics regarding health, nutrition, and there's a lot of buzz because I realized this is the first time we are having a dietitian with us, and ma'am is going to speak a lot about health. How is a sports nutritionist works, what kind of food we should eat, how we should eat. Hi Sapan. Hi Soldier Disguise. So first of all, this is Instagram live series. We do it every Thursday, not to forget, 9 p.m. and that's the time where we invite a lot of people. But then of late I realized this is the first time we've invited someone who's into nutrition, and that was evident once we saw that there were so many questions which were coming up. Hi Mackenzie, how are you? How's kickboxing going? Okay, so today we'll have lots of questions. I've made lots of notes because it's going to be loads of fun. Right? Hi Rohit. So Anu ma'am is here. Ma'am, you're welcome. Who's idol on your right side? My right. Oh, that's a memento of Special Forces I was part of. So, ma'am, good evening. Good evening, sir. How are you? I'm good. Last time मैंने थोड़ा गड़बड़ कर दिया था. For that, Insta live I did from my own account. Let me check it again. Yeah, we are on both in crampons. So welcome, ma'am. Welcome to Thank SN you so series. much, sir. Thank you so much, sir. So ma'am, we'll start with your introduction. आप ही अपने आप को introduce करो. What is dietitian? What is nutritionist? Yeah. मैं कुछ गड़बड़ बोल दूंगा. Then you be wrong. No, sir. Ma'am, please. Hi, everyone. Thank you so much for your very good response and everything. Yes, sir. My name is Anupama Upadhyay, and I am a clinical dietitian and sports nutritionist. I completed my clinical dietetics from SNDT, Juhu, from Mumbai, and sports nutrition from Nirmala Niketan, Mumbai. And I completed my certified diabetes educator from Pradeep Gadge sir. And I completed my internship with well-known hospital, Breach Candy Hospital. And my work experience, I worked with the celebrity dietitian Gauri Murthy, Raksha Lalla, and so on. Yeah. So actually now we should start from ki exactly dietitian hota kya hai, right? So Exactly. sports, right? So sports nutrition is exactly purposely like कि एक particular sports के लिए उसके Okay. अकॉर्डिंग उसका एनहांसमेंट, उसके परफॉर्मेंस एनहांसमेंट, अकॉर्डिंग डेफिशिएंसी गोल्स एंड उसके हिसाब से एक मील प्लान बनाया जाता है, राइट? एंड क्लिनिकल Right. डाइट के अंदर डेफिशिएंसी या जो पर्टिकुलर एक डिजीज को गोल लेके बनता है कि ये पर्सन के लिए यदि ये डिजीज है तो उसके लिए क्या प्रोहिबिटेड है, उसको क्या नहीं खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए. जनरली लोगों को ऐसा लगता है फ्रूट और सैलेड दे देता है वो डाइटिशियन होता है. बिल्कुल, होता है. दिमाग में यही रहता है. लोगों को डाइटिशियन क्या, अरे फ्रूट सैलेड ही तो देगा और देगा क्या. और जनरली सर हमारे पास तो आते लोग बाग बिहेव ऐसे करते हैं कि आई नो एवरीथिंग. सर ऐसे पूछते हैं कि बनाना, आई नो बनाना इज हेल्दी. सो सर कभी हॉस्पिटल में एक्यूट किडनी डिजीज के पेशेंट को यदि बनाना दे दिया ना सर, तो वो वही कोलैप्स हो जाएगा. तो मैम लोग नहीं, सबको यही लगता है. मुझे भी लगता था जब तक आपसे बात नहीं हुई, तो मैं यही सोचता. मैंने कहा Right. डाइटिशियन में से क्या है, फ्रूट्स खाते रहो सब ठीक है. बट देन सब ठीक है. वंस आई रियलाइज्ड. Yeah. एग्जैक्टली. तो मैम Right, दैट्स sir. व्हाई प्लीज इलैबोरेट मोर. मैम स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट वाला जैसे आपने बताया, वो ऑन दैट So, बेसिस बताइए. राइट सर. सो एक्चुअली सर क्लिनिकल डाइटिशियन का मैंने आपको बताया कि उसके रिलेटेड होता है, आपकी डाइट के रिलेटेड होता है, आपकी डिजीज के रिलेटेड होता है.
सो एक्चुअली डाइटिशियन एक ट्रेनर की तरह काम करता है सर। जैसे ट्रेनर आपको जैसे आप एवरेज बेस कम के लिए हमें तैयार करते हैं कि एग्जैक्टली आपको कैसे वर्कआउट करना है, आपको प्री वर्कआउट कैसे करना है, या आपको स्ट्रेचिंग कैसे करनी है। इट्स लाइक डाइटिशियन ऑल्सो एक ट्रेनर होता है जो ट्रेन करता है आपको कि कैसे खाना है, आपको कितना खाना है, आपको कब खाना है। राइट सर? इट्स नॉट लाइक एक मील प्लान दे दिया और आपको खाना है, आप खाओ, नहीं खाना है छोड़ो। इट्स ट्रेनिंग। एक रिस्पॉन्सिबल डाइटिशियन ऐसा ही होता है सर, जो आपके ईच एंड एवरीथिंग को ध्यान में रखता है सर। Right, sir. So it's basically, that not one meal plan is for everyone. It's based on, tailor-made for individual. Right, sir. Yeah, actually. Very nice. So actually, sir, यहाँ पे मैं टेलर मेड की बात नहीं करूंगी क्योंकि ऑलरेडी अपने पास बहुत सारे व्यूअर्स है, सबके अलग अलग है, तो अपन यहाँ पे अभी केवल बेसिक्स बात करेंगे जो सबके लिए काम आएगी। वन हाई एल्टीट्यूड में अपने साथ जो जा रहे हैं वो स्पोर्ट्स पर्सन एंड एवरीवन, सबके लिए एक नॉर्मल प्लान है। जो एक आई थिंक बेसिक्स है, जैसा कि मैंने बोला कि हाउ टू ईट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो सबसे पहले अपन ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं हाउ टू ईट से, राइट? कि खाना खाते कैसे। इट्स वेरी नॉर्मल कि लोग खाना खाते कैसे वो भी भूल गए। तो वी शुड स्टार्ट फ्रॉम वेरी इनिशियल कि खाना खाते कैसे हैं। खाना ऐसे खाते हैं व्हेनेवर यू थिंक कि आपको 2 रोटी खाते हैं आप, राइट? तो आपको विजुअलाइज करना है 2 रोटी तो मुझे 1 रोटी ही सर्व करना है। ओके, मुझे 2 रोटी सर्व नहीं करनी है, मुझे 1 रोटी सर्व करनी है। ओके, जब मैं 1 रोटी खा लेता हूँ और मुझे लगता है कि मैं और खा सकता हूँ क्योंकि मैं तो रोज 2 रोटी खाता हूँ, तो मैं आज भी 2 रोटी खाऊंगा। बट 2 रोटी के बीच में 1/4 आता है, हाफ आता है, 3/4 आता है, देन फुल रोटी आता है। तो हमें कभी भी डायरेक्ट दूसरा नहीं लेना है ना। हमें मैम एक चीज बताइए, एक डाउट है मेरा, ठीक है? आप मेरे को ये बताइए, सर को देते समय भी आप ऐसे ही करते हैं या सर को बोलते हैं खाते रहो और बाकियों को ज्ञान देने के लिए आप ऐसे बोल रहे हैं? ये बताइए आप पहले। नहीं सर, एक्चुअली है कि जितना अच्छा होता है कि आप अपने आप खुद सर्व करें सर, है ना? तो वो थोड़ा बीवी वाला प्यार कम करें तो ज्यादा अच्छा होता है सर। तो आपको सर से पूछना पड़ेगा। सर बिल्कुल सही बात है सर कि आप अपने पेट के हिसाब से, क्योंकि आप किसी के अंदर घुस नहीं सकते हैं। कोई भी डाइटिशियन दुनिया का ये नहीं डिसाइड कर सकता सर। जो लोग वर्क करते हैं वो लोग 5-5, 6-6 रोटी खाते हैं, राइट सर? इनफैक्ट उनका, क्योंकि उनका डाइट है। हाउ कैन आई डिसाइड कि उनको 2 ही रोटी खाना चाहिए या 1/4 रोटी खाना चाहिए? आज रोमिल सर ने बहुत वर्कआउट किया, मैं रोमिल सर 1 ही रोटी खाएंगे, कैसे हो सकता है सर? राइट? वेरी गुड पॉइंट। आपका वर्कआउट कैसा है, आज आपका वर्कआउट क्या है, आपका हंगर आज अभी सर अभी कोई वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, आज सीजन ऑफ सीजन चल रहा है सर का, फिर भी सर यदि 6 रोटी खाएंगे तो सर सॉरी कैसे होगा ना। सो आप अपनी हंगर, आपकी सटाइटीज को आप समझेंगे तो आप एक्चुअली माइंडफुली खाएंगे। द मेन थिंग इज ईट माइंडफुली, राइट? ओके, राइट, ये आपको खाना है माइंडफुली कि आप खाना। और माइंडफुली के लिए भी एक मैंने 4S रूल स्टार्ट किया है कि एक आपको 4S रूल याद करना है हमेशा। 4S जो आपके जब आप खाते हो तो आपको ध्यान में रहना चाहिए, राइट सर? ओके, बताइए। यस सर। तो फर्स्ट S है सिट, हमें बैठ के खाना है, राइट? ओके, को लगता है मैं तो बैठ के ही खाता हूँ, है ना? नहीं सर, जो चलते फिरते 4 ग्रेप्स अपन खा लेते हैं, फ्रिज में खोलने के बाद थोड़ा सा टुकड़ा मिठाई का खा लेते हैं, इतना सा तो खाया था, राइट? वो छोटा सा मिठाई का डब्बा आया नहीं, मैं ऐसे स्वीट नहीं खाता हूँ पर मैंने टेस्ट किया था, राइट? बिल्कुल करते हैं। और सर रात को यदि आपका तो पता नहीं जनरली लोगों का है कि यदि रात को मैं नेटफ्लिक्स देख रहा हूँ तो थोड़ा सा कुकीज खा सकता हूँ, थोड़ा सा नमकीन खा सकता हूँ। जो वो थोड़ा थोड़ा होता है ना सर, वो काउंट भी नहीं होता है और उसमें अच्छा कैलोरीज होता है। ओके, नाइस। सो ईट माइंडफुली, ईट बैठ के खाना है, हमें जब भी खाना है अच्छे से खाना है। आप मिठाई भी खा रहे हो तो आप बैठ के खाओ, वो छोटा सा टुकड़ा ना, तो ब्रेन को आपने अपने आप से झूठ बोला है कि भाई ब्रेन तू पता मत करना, मैंने खा लिया है। तो झूठ बोलने से काम नहीं चलता है, आप माइंडफुली खाइए, आप सोच के खाइए। Yes, तो आप जो फ्रिज से निकाल रहे हैं, कुछ आपने फ्रूट निकाला तो यू शुड काम डाउन, सिट एंड देन ईट। यस, देन सिट ईट। और तो यू आर रजिस्टर्ड
कि आपके ब्रेन को आप रजिस्टर्ड करते हैं कि आप खा रहे हैं, और आपको ध्यान भी रहता है कि मैंने खाया है, राइट। और जब आपने Got it. खाया है तो आपको अपने आप लगता है अरे अभी तो खाया है, अब तो शर्म कर, थोड़ी देर बाद मैं और कैसे खाऊं, है ना। Okay. Right. Got it. Very valid. So one thing, and next, the first S is sick, second S is slow. Eat slowly, very slowly खाना Okay. है। एक्चुअली कैसे होता है सर, आज मेरे पास एक क्वेरी आया था कि मुझे थोड़े गैस्ट्रिक इश्यूज हो रहे हैं, कॉन्स्टिपेशन है, एंड समटाइम कि मुझे थोड़ा फूड इंडाइजेशन हो रहा है, राइट। और Right. जनरली वो डाइट वो ऑलमोस्ट 1 ईयर से फॉलो कर रहे हैं, राइट। Okay. जब एक पर्सन 1 ईयर से एक डाइट फॉलो कर रहा है तो अब उसको अचानक ये प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है, राइट। So Valid. food is everything, person is same and everything is same, but Right. your eating pattern is different, right। जब आप एक Okay. ही फूड को आप जब खाते हो, आप न तो दिल से नहीं खाते हो, you think कि yes this is the right food और मुझे खत्म करना है, राइट। ये सैलड मेरे Right. डाइटिशियन ने लिख के दे दिया है, मुझे खत्म करना है, नहीं होता है सर वैसा। आपको ईट स्लोली। सर हमारे Okay. और जो दादाजी और उन लोग घर में थे, वो बोलते थे कि खाना इतना चबा के खाओ कि आप उसको पी लो, और पानी को Right. इतना धीरे पियो कि आप चबा के खा रहे हो, आपको ऐसी फीलिंग आए, राइट। ये थोड़ा सा प्रैक्टिस के बाद समझ में आएगा सर। मैम ये बताइए, खाने को तो समझ गए कि ठीक है, फ्रूट में इतना च्यू कर लिया कि पानी की तरह पी रहे हैं, पानी को च्यू करने का मतलब बताइए। सर ऐसा होता है कि लोग बाग अपन हाइड्रेशन का जब टॉपिक लेंगे तो मैं वापस आपको बताऊंगी कि पानी Done. को कैसे च्यू करते हैं। ठीक है। तो अभी एक बार खाना खत्म करते हैं कि कितना धीरे धीरे हमको खाना है। धीरे खाने की Perfect. प्रैक्टिस कैसे करती है मैं, अभी भाई धीरे कितना धीरे खाऊं, राइट। सिंपल प्रैक्टिस है सर उसका खाने की भी। अपन एक बनाते हैं, एक मॉर्सल रेडी करते हैं और दूसरा मॉर्सल अपना बाजू में तैयार रहता है, राइट। कि ये चबाया नहीं चबाया आई डोंट नो, दूसरा मॉर्सल रेडी है मेरा, राइट सर। सो हमें वो नहीं करना है, हमें वेट करना है हमारा जो मुंह का मॉर्सल है वो खत्म हुआ है कि नहीं हुआ है, राइट। जब वो खत्म हो गया तब हम दूसरा मॉर्सल बनाएंगे। यस सर। इतनी देर में तो 3 व्हाट्सएप मैसेजेस, इंस्टाग्राम आ जाते, तो इसलिए जल्दी जल्दी तो करना पड़ता है। नो सर, उस वक्त साइलेंट मोड पे कर दीजिए सर। गॉट इट, दैट्स द प्रॉब्लम। थोड़ा सर मोबाइल को भी थोड़ी शांति दीजिए, पूरे दिन स्क्रॉल करते हैं। परफेक्ट सर। गॉट इट, सो बिल्कुल। ईट स्लोली से आपको ऐसा है प्रैक्टिस होएगा सर, ब्रेन में रजिस्टर्ड होने में टाइम लगता है सर। आप जब Okay. खाते हैं, आप स्लोली खाते हैं तो आपको पता चलता है। जब मैं आपको हंगर और सटाइटी की जब बात कर रही हूँ ना सर, तो इट्स नॉट इजी कि आपको समझ में आ जाए कि मेरा हंगर। आप जब स्लोली खाएंगे तभी आपको पता चलेगा कि यस गॉट इट, परफेक्ट। आपको एकदम स्लोली खाना है, चबा के खाना है, तब देन योर ब्रेन विल रजिस्टर कि यस यू आर ईटिंग वेल। तो सेकंड एस हो गया सर स्लो, राइट सर। परफेक्ट, बिल्कुल। देन थर्ड एस इज स्मॉल, राइट सर। आपको सर्व भी स्मॉल करना है सर, राइट। होता है ऐसा है सर, पता है एक हमारे क्या होता है, हम लोग एक साथ अपना बहुत सारा, जैसे स्पेशली आप बुफे या शादी वगैरह में देखा है सर आपने कि लोग बाग एक साथ प्लेट भर के बैठते, दोबारा नहीं वही करते हैं मैम। नहीं सर, वो का भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आपने सर्व कर लिया। देन उसके बाद पता है क्या है सर, उसके बाद होता है ऐसा है कि यदि ये जूठा छोड़ा मैंने तो बेचारे किसी गरीब का पेट नहीं भरता है। पता है सर जूठा कैसे छोड़ सकते हो, जूठा लगे छोड़ा तो पाप लगेगा। आपके खाने से सिर्फ आपका पेट भरता है, आपका पेट फूलता है, किसी गरीब का पेट नहीं भरता, ठीक है सर, राइट, बिल्कुल। आपको जेन्युइनली यदि लगता है कि मैं किसी मतलब गरीब का पेट भरे, तो आप सर्व कम कीजिए, आप अपने आप की प्लेट में ही कम लीजिए। आप यदि थोड़ा लेते हो तो जो दूसरा जो बचा है वो खा सकता है कोई, ठीक है। और आप सर्व थोड़ा करके, आपके पास जैसे मैंने बोला आपके पास चांस है कि आपने 1 लिया, उसके बाद आप 1/4 ले सकते हो, देन हाफ ले सकते हो, देन 3/4 ले सकते हो, देन उसके बाद फुल ले सकते हो। पूरा साथ में आप 2 रोटी लेके बैठे हो तो नहीं, गलत बात ना सर, राइट। ऑब्वियसली, वेरी नाइस। सो
So small, serve small. एंड वन मोर क्वेरी था कि मतलब इंडाइजेशन कॉन्स्टिपेशन होता है, उसका वन मोर रीजन, जैसा मैंने एक बोला कि आप ईट विद, आप स्लो नहीं खा, आप फटाफट खा रहे हो, उसकी वजह से भी इंडाइजेशन के इश्यू होते हैं. एंड वन मोर इश्यू होता है सेंसेस से साथ नहीं खाने से. ओके Yes, Bhunesh is asking, you can leave in the plate. No, Bhunesh, you should serve small in the plate. लिस्ट वेरी राइट. It's better. वही हम जैसे but बच्चों को बताते हैं कि खाना फिनिश करना है, इतने लोगों को खाना नहीं मिलता तो इसलिए तुम्हें खाना ही खाना है, बट देन दैट इज ओनली फॉर सेइंग, yes, नॉट yes, same एक्चुअली. here. सर अपना गॉट इट. पेट गार्बेज नहीं है सर. अपना पेट यदि आप नहीं खाओगे तो वो गार्बेज में डालोगे. आपके पेट को क्यों गार्बेज बना रहे हो सर? गॉट राइट इट. ना? वैलिड पॉइंट मैम. बिल्कुल. Yes, sir. And this four tests is senses, sir. Right? जो मैंने Okay. yeah, eat with senses is very important, sir. मतलब कैसे है कि senses use कैसे करनी है, right? ओके. सेंसेस यूज करने के लिए चाहिए सर कि सबसे पहले गैजेट्स को साइड में करो. सब ना बीच में व्हाट्सएप के मैसेज आ जाते हैं, राइट? तो वो मैसेज उसको मोबाइल, लैपटॉप, टीवी एंड एनी गैजेट्स यदि आपके सामने नहीं है तो आपके सेंसेस Okay. अपने आप ही यूज होंगे सर, राइट? क्योंकि आपके सेंसेस उसमें बिजी है कि अभी किसने क्या मैसेज किया है. तो आप ये कब डिसाइड करोगे कि मेरे को 1/4 लेना है या हाफ लेना है, राइट? मैम लेकिन हम तो आर्मी में रह के भूल ही गए टेस्ट वेस्ट जो भी होता है. अब ड्रिल की तरह खाते हैं, 2 रोटियां हैं, 2 खा यस लिए, सर, 4 खाने. एग्जैक्टली तो सर. सेंस कैसे काम करेंगे? Exactly, sir. Actually, sir, it's a very big problem. Everything is fun, but senses genuinely खत्म हो रहा है, sir. सर एक्चुअली सेंसेस जो एक फूड के साथ जो अपनी बॉन्डिंग होती है, आज एक्चुअली आप अपने घरों में जब होता था, एक प्रेयर्स होती थी स्कूल में फूड के पहले. एक फूड Right. एक ब्लेसिंग्स होता है सर. आप फूड के साथ अपना जो रिलेशन है वो ही खराब हो रहा है सर. लोग बाग फूड को डाइट, मैं कैसे फास्टिंग करूं, मैं क्या करूं. फूड ऐसे नहीं है. फूड इज न्यूट्रिशन सर. आपके फूड की Correct. वजह से आपकी बॉडी चल रही है. आप फूड के कारण ही आप कुछ अचीव कर पाते हैं. और आप फूड को अपना एनिमी मत समझिए. फूड इज लाइक अ पेरेंट. पेरेंट कैसे होता है ना कि बच्चा कुछ भी करे, बट वो चाहता है कि भाई मेरा बच्चा अच्छा ही हो, उसका सबसे बेस्ट ही हो. फूड हमेशा अपनी बॉडी में जाके अपना सबसे बेस्ट परफॉर्म करता है. सो ऑलवेज ईट विथ सेंसेस. और न्यूट्रिशन और फूड के साथ एक अच्छी एक बॉन्डिंग होनी चाहिए. फूड इज ब्लेसिंग्स. अपने शायद मेरे को ऐसा लगता है फूड की अवेलेबिलिटी इतनी ज्यादा हो गई है कि लोगों को है ना फूड ऐसे लगने लग गया है कि ये कम खाऊं, नहीं खाऊं, फास्टिंग करूं, कीटो करूं, इंटरमिटेंट करूं, पता नहीं. बट इससे अच्छा है Okay. कि आप एक फूड से एक बॉन्डिंग बनाए. ईट विथ सेंसेस. सर इट्स अ साइंटिफिक कि जब आप ऐसा फूड खाते हैं जो आपके सेंसेस से नहीं खाते हैं तो आपको अल्सर होने के चांसेस हैं. आपके पेप्टाइड Okay. अल्सर्स हो सकता है क्योंकि आपका जो फूड के साथ बॉन्डिंग नहीं है. आप वो फूड को खा रहे हो क्योंकि ऐसा घास फूस कुछ भी दे दिया, उसको खाए जा रहे हो कि जबरदस्ती बस मुझे पतला पेट होना भरना है, टाइप. पेट भरना टाइप. तो जब तक आपकी फीलिंग, तो 5 सेंसेस यूज करना चाहिए सर जब भी आप खा रहे हो. तो इस फर्स्ट सेंसेस Got it. व्हेनेवर यू सी योर फूड, आपको फूड को देखना है. कई बार तो थाली में क्या है लोगों को वो भी पता नहीं होता, स्पेशली बच्चों को, कि क्या आया टीवी के सामने रखा है, मम्मी ने मुंह में डाल दिया, हो गया काम. नो सर, यू हैव टू सी योर फूड. द फर्स्ट सेंसेस इज सी एंड लाइक स्मेल द फूड. अपना इंडियन फूड तो सो अरोमेटिक, इज लाइक इतने अच्छी डिलीशियस स्मेल होती है. तो उसको अच्छे Correct. से उसको स्मेल कीजिए. यू नो, ईट विथ सेंसेस, च्यू विथ सेंसेस. और इतना साइलेंट से खाइए कि अपनी च्यू को लिसन कर सके, आप सुन सके कि वाओ व्हाट अ फूड, और अप्रिशिएट कीजिए. सर घर में भी सब खुश रहेंगे, अरे वाह आपने खाया, नहीं तो खाया. और Very right. ऑलवेज अप्रिशिएट कि अरे वाह आज ये बहुत अच्छा बना. ये हमेशा एक फूड के साथ अच्छी बॉन्डिंग. ईट विथ सेंसेस. तो Yes. दीज आर द 4 S, द की रूल्स. सिट, स्लो, स्मॉल एंड ईट विथ सेंसेस. ओके सर, Perfect. Got परफेक्ट it. सर. अभी सर मैं इसको अपने
हाई एल्टीट्यूड के साथ ऐसे जोड़ना चाहूंगी सर, हमें बिल्कुल जब भी हमें अपने ट्रेल के लिए रेडी होना है, कुछ भी करना है, तो हमें हमेशा स्मॉल खाना है, हमें हमारा 3/4 फुल करके खाना है। ऐसे नहीं है, पता नहीं रोमिल सर दूसरा कहाँ ब्रेक लेंगे तो ब्रेकफास्ट दबा के खा लो, फिर बीच में बोल रहे सर चला ही नहीं जा रहा है। सो करेक्ट सो जब भी आप ओवर ईट करते हो तो आप उतने एनर्जेटिक फील नहीं करते हो। आप एनर्जेटिक आप तब फील करते हो जब आप 3/4 फुल खाते हो। जब भी सर ओवर ओके ईट का सिंपल साइन है सर कि यदि आपने खाया और आप बोल रहे हो एक नींद लेके आता हूँ, मतलब आपने ओवर ईट किया है, इट्स श्योर सर। सब खाना खाने के बाद यू शुड फील एनर्जेटिक, यस अब मुझे चलना है। दिस इज द मेन थिंग कि आपने 3/4 खाया है। परफेक्ट, just one thing. यस Right. सर, So I'll just tell the viewers that ma'am is going to accompany us for Everest Base Camp trek. So यस सर। I just hope कि मैम वहां पे लोगों को खाने दें, अदरवाइज वो बेचारे कमजोरी हो जाएंगे यार। नहीं नहीं सर, बस खाना है लेकिन उतना खाओ कि आप एनर्जेटिक फील करो, कि ऐसा ना अंडरस्टैंड करो कि आप सो ही जाओ। तो सर अच्छा है ना सर, अच्छा है कि हम 100%। एनर्जेटिक रहेंगे, है ना सर? बिल्कुल हेल्दी रहना इज मोर इम्पोर्टेंट, वेरी राइट। एग्जैक्टली सर, बिल्कुल। सेम थिंग जैसा मैंने बोला, हाइड्रेशन के साथ भी सेम करता है, वर्क सेम करता है कि ओके आपको स्लोली पीना है। लाइक कैसा होता है सर, हमारे पास मील रिकॉल्स आते हैं कि हम लोग जनरली पूछते हैं कि आप कितना पानी पीते हो। सर हाइड्रेशन पे एवरीडे कुछ ना कुछ चालू रहता है कि 5 लीटर पानी पीना चाहिए, 6 लीटर पानी पीना चाहिए, एज मैनी लाइक। यस सर सबका एवरीथिंग अलग होता है, सबका स्वेट रेट अलग होता है, सबका वर्कआउट अलग होता है, सबका बॉडी लेवल अलग होता है। सर आप कई बार देखते हैं कि कोई कोई वर्कआउट करता है जिम के अंदर तो लाइक स्वेट लाइक कि उसका पूरा टी शर्ट एंड एवरीथिंग सो मतलब गीला हो जाता है। तो सबका बिल्कुल स्वेट रेट अलग है, सबका स्वेट रेट मतलब वाटर लॉस अलग है, तो हाइड्रेशन भी अलग होता है। सो राइट हाइड्रेशन एक्चुअली आपको कैसे करना रहता है कि जनरली रनर्स लोग के साथ हम ऐसा करते हैं कि यदि 1 आवर का रन है तो 1 आवर के ठीक है बाद उसने जितना वाटर लॉस हुआ है उसके अकॉर्डिंग उसको ड्यूरिंग रन के वाटर दिया जाता है। पर सिंपल ठीक अपन है इतना स्पेसिफिक नहीं जा रहे हैं, तो हम अभी राइट एकदम लेमैन वाली बात करेंगे कि यदि आपको पूरे दिन में बोला गया है कि 3 लीटर या 3.5 लीटर पानी पीना है, तो 1 आपको पर ग्लास एवरी आवर पीना है, राइट? ओके ओके, सो आप राइट डिवाइडेड जो आपको 3 लीटर है, ऐसा नहीं है सर। जैसे पूछते हैं सर कि कैसे पानी कितना पीते हो, सर 2 लीटर तो सुबह उठ के पी लेता हूँ। तो भाई पूरे बिल्कुल दिन में 1 लीटर ही पीते हो। तो हाँ जनरली करेक्ट सुबह पानी बहुत जरूरी है, शाम को पानी नहीं पीना चाहिए। नथिंग सर, एवरी आवर 1 ग्लास ऑफ वाटर, बस उतना पीना है और पूरे दिन पीना है, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यस सर। दैट्स राइट याद आ गया। सो आपको नहीं बिकॉज आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल सेइंग दिस कि यार मैं तो सुबह उठते 3 लीटर पी लेता हूँ, दिन भर का हो गया, तो दैट इज रॉन्ग, दैट मीन्स दैट इज वेरी रॉन्ग सर ना। सर सिंपल पता नहीं आपने तो नहीं बनाई होगी, यहाँ पे जो फीमेल है उनको सबको पता होगा, जब धनिए की चटनी बनती है, द कोरिएंडर चटनी या एनीथिंग, ओके आपने कुछ ग्राइंड किया है, तो आप सिंपल, आपके पास 2 ऑप्शन है, आप एक साथ सारा पानी डाल के बनाओ या बिल्कुल पानी मत डालो। दोनों केस के अंदर आपकी चटनी नहीं बनने वाली है। आपने बहुत सारा पानी डाला तो भी वो कोरिएंडर ऐसे के ऐसे खड़ा रहेगा, और यदि राइट आपने बिल्कुल पानी डाला तो भी नहीं बनेगा। सो सिंपल थिंग कि आपको धीरे धीरे पानी, यदि एक प्रॉपर कंसिस्टेंसी की चटनी चाहिए तो आपको धीरे धीरे पानी, ग्रेजुअली पानी डालना पड़ता है। भाभी से पूछिएगा, आपको घर पे पक्का मैडम जरूर बताएगी आई एम कि श्योर। आपको आज तो सर आपको डांट पड़ेगी कि आपको चटनी बनानी नहीं आती। नहीं मैम डांट ये पड़ेगी कि तुम खाते नहीं हो, मतलब अपना पता, मतलब आई डोंट रियलिश एट ऑल, मतलब मेरे को आई एम टिपिकल केस की, मतलब पता नहीं चला कि आज खाने में क्या खाया, तो व्हाट्स यू आर सेइंग, तो दैट देन आई विल सर हैव मतलब टू आपको तो लिसन अगेन एंड अगेन। आपको तो सेंसेस से खाना चाहिए सर। मस्त है मस्त। ओके ओके सर। सो ऐसा है कि हाइड्रेशन थ्रू आउट द डे होना चाहिए, ना कि एक साथ होना चाहिए। ओके आप थ्रू आउट द राइट डे खाते हो आपको, और सिंपल थिंग सर, अपना हाइड्रेशन लेवल ध्यान रखने का
कि जो आपका यूरिन है वो हमेशा क्रिस्टल क्लियर रहना चाहिए, इज नॉट लाइक राइट। डार्क इन कलर, सो यू कैन अंडरस्टैंड कि यस मैं हाइड्रेट हूँ, मैं मतलब मैंने आज पानी की कमी नहीं है, मैंने पानी अच्छे से पिया है। सो जस्ट ऑलवेज नोटिस कि हाँ मेरा यूरिन कलर बराबर है कि नहीं है, कीप सिपिंग। एब्सोल्युटली। और यस सर, एंड एग्जैक्टली सर, जब अपन हाई एल्टीट्यूड पे होते हैं तो उसके लिए आपको सबसे अच्छा है कि आपको अडेप्टेशन के लिए कीप सिपिंग, आपको थोड़ा थोड़ा पानी आपको ग्रेजुअली पीते जाएंगे, आप जितना थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहेंगे आप उतना जल्दी आप अडेप्ट करेंगे, इट्स द वे। यस। तो बेटर है कि आप कीप सिपिंग का आदत, थोड़ा थोड़ा पानी का आदत भी आप अभी से डालें। आप अचानक वहां जाके सोचो कि मैं आज पानी पी शुरू करूँ। लेता हूँ, क्योंकि मेरी बॉडी को भी हर चीज को अडेप्ट करने के लिए टाइम लगता है। जैसे फूड के लिए 3/4 फुल है, आप अभी से शुरू करेंगे तब आपको रियलाइज होएगा, यू कैन लर्न कि कितना 3/4 फुल होता है, राइट? कि मैं करेक्ट। क्या खा के एनर्जेटिक फील करता हूँ, मैं कितना खा के एनर्जेटिक फील करता हूँ, राइट सर? सो इट्स एब्सोल्युटली। लाइक, सो वैसे ही सर हाइड्रेशन का भी सेम है। आप यदि प्रॉपर हाइड्रेशन करते हैं तो आपका बोवेल मूवमेंट बराबर रहता है, आपको डाइजेशन बराबर होता है। डाइजेशन केवल मुंह या पेट या इंटेस्टाइन में जाके नहीं होता है, डाइजेशन आप जब च्यू करना शुरू करते हो तब से शुरू होता है। लाइक प्रॉपर डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड असिमिलेशन, द प्रॉपर एक वे है फूड को डाइजेस्ट होने के लिए, ये तीनों प्रॉपर होने चाहिए सर, तब जाके पक्का। लाइक पक्का आप अच्छे से फूड का जो बोलते हैं सारे बेनिफिट्स ले पाते हैं। वेरी परफेक्ट राइट। सर। परफेक्ट। सुपर। ओके ओके, अब थोड़ा सा मैं स्पोर्ट्स डाइट के बारे में बताऊंगी कि एग्जैक्टली स्पोर्ट्स डाइट क्या होता है। स्पोर्ट्स करेक्ट। डाइट, स्पोर्ट्स डाइट सर जैसे थोड़ा सा जैसे टू टाइप्स के, मतलब जनरली स्पोर्ट्स को अपन बोल सकते हैं कि लाइक स्ट्रेंथ रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के वर्कआउट होता है, एरोबिक वर्कआउट होता है, जैसे ट्रेनिंग जिसमें वेट लिफ्टिंग का है। तो वेट लिफ्टिंग यस। की ट्रेनिंग है सर, तो वेट लिफ्टिंग की ट्रेनिंग के लिए आपका डिफरेंट मसल्स वर्क करता है। डिफरेंट मसल्स जब वर्क करते हैं तो उसका एक फ्यूल सिस्टम अलग होता है। इसके अंदर एनोरेबिक फ्यूल सिस्टम वर्क करता है। एनोरेबिक फ्यूल सिस्टम के लिए उसको रिप्लेनिश करने के लिए आपको कार्ब एंड क्रिएटिन चाहिए होता है। सो इट्स अ ओके। वेरी कॉम्प्लिकेटेड चीज, अपन उसमें नहीं जाएंगे। सर का सब थोड़ा राइट। ब्लैंक होने लग गया। नहीं नहीं, सो विल टेक इट लाइट हार्टेड ऑब्वियसली। सो एक्चुअली एरोबिक वाला समझ आता है मैम, बिल्कुल। सर बिल्कुल। सो अपन एरोबिक पे ही बात करेंगे कि राइट। एरोबिक वर्कआउट जो है, तो एरोबिक के अकॉर्डिंग मैंने इसके लिए बताया कि एक स्पोर्ट्स, यदि स्पोर्ट्स डाइट है तो यदि एरोबिक है तो उसके लिए अलग रहेगा, एनारोबिक है तो उसके लिए अलग रहेगा, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है तो अलग रहेगा, तो एवरीथिंग इज डिफरेंट। सो अपन राइट। एरोबिक वर्कआउट की बात कर रहे हैं, तो एरोबिक वर्कआउट के लिए अपन कौन सा सिस्टम यूज होता है, एनर्जी सिस्टम यूज होता है, अपन उतना डिटेल में नहीं जा रहे हैं। सिंपल राइट। अपन का प्रोटीन और फैट या प्री वर्कआउट मील क्या होना चाहिए, ड्यूरिंग वर्कआउट क्या करना है अपने को, और पोस्ट वर्कआउट अपन क्या खा सकते हैं, एक सिंपल एक बहुत बेसिक वाला एक गाइडलाइन दे सकती हूँ मैं फिलहाल। तो राइट। ऐसा है कि होता क्या है एग्जैक्टली लोगों को अभी तक जनरली अभी क्वेरीज आए थे तो उसमें तो आई फील कि लोगों को कार्ब प्रोटीन भी नहीं पता होता है कि ऐसा है कि मैं कार्ब खा रहा हूँ तो मोटा हो रहा हूँ, और लोगों को लगता है फ्रूट ही हेल्दी है दुनिया का। सो ऐसा बाकी नहीं कुछ नहीं। है। करेक्ट। सो कार्ब होते क्या है, कार्ब कार्ब होते हैं अपने ऑल ग्रेन्स, ब्रेड, फ्रूट, वेजिटेबल्स, everything is carb, okay? ओके। And protein is two types of protein, plant protein and animal protein. Animal protein के अंदर अपना मीट, फिशेस, डेयरीज आता है, एंड प्लांट प्रोटीन में अपने पल्सेस, सोय, ये सब आता है। परफेक्ट सर। राइट। सो ये प्रोटीन होता है, एंड फैट इज लाइक अपने ऑयल्स एंड ऑयल सीड्स एंड नट्स, ओके? ओके। सो दे आर द फैट्स। सो एक दिस वेरी सिंपल एंड वेग में बता रही हूँ, एंड देन अभी आता है कार्ब, क्योंकि एरोबिक उसके एरोबिक वर्कआउट के अंदर सबसे ज्यादा कार्ब यूटिलाइज होता है। तो वी यस। जस्ट कंसंट्रेट कि कार्ब क्या होता है, और कार्ब भी एग्जैक्टली टू टाइप्स ऑफ कार्ब होते हैं सर, इज लाइक ओके। कॉम्प्लेक्स कार्ब और सिंपल कार्ब। तो बहुत
डिटेल में नहीं जाके मैं एक सिंपल स्टोरी पे आ जाती हूँ कि बहुत ज्यादा सीरियस हो गया। नहीं नहीं मैम, बहुत सही है। So There are a lot of people who are runners and all जिनको they were keen कि those should be covered. I said yes, ma'am is going to yes, cover that. yes sir. So actually sir, सबसे पहले रनिंग का मालूम है ना सर, रैबिट एंड टॉर्टोइस से शुरू हुआ था, राइट सर। Correct. तो सबसे पहले रनिंग रेस टॉर्टोइस और रैबिट ने लगाई थी सर। एज अ डाइटिशियन मैं बताती हूँ रैबिट क्यों सो गया था, किसी को पता नहीं है। उसने एक्चुअली सिंपल कार्ब खाया था एक्चुअली Right. Simple काम. Right. कोल्ड ड्रिंक पी के गया था सर जल्दी से, इसलिए बाहर जाके सो गया था, पता है। Okay. रैबिट तो रनर था, पहुंच ही जा सकता था ना। तो बट होता यह है कि जब भी आप सिंपल कार्ब खाते हैं आपकी एनर्जी स्पाइक फास्ट होती है और ड्रेन भी उतनी ही फास्ट होती है। तो जनरली Okay. सिंपल कार्ब बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, बच्चों को सबको सिंपल कार्ब बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं क्योंकि आपके वो मूड एनहांस करते हैं, क्योंकि यू Okay. लाइक इट और आपको इमीडिएट क्विक एनर्जी मिलती है। तो यू रियली लाइक इट कि हाँ कि सिंपल कार्ब के तो मुझे तो अच्छा ही लगता है, मुझे तो जूस पी के मजा ही आता है। तो Energetic. सो एनर्जेटिक ही फील होता है, बट Right. उसकी एनर्जी ड्रेन भी उतनी जल्दी होती है। और टॉर्टोइज होता है लाइक कॉम्प्लेक्स का, वो आपको धीरे धीरे आपको एनर्जी देता है, लॉन्ग एनर्जी देता है। तो यू आर स्लोली एंड स्टेडीली विंस द रेस। Moving. Very nice ma'am. बहुत बढ़िया. सो दिस इज द लाइक अपना कॉम्प्लेक्स का। Simple and complex. कॉम्प्लेक्स का तो तो आप इनके कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल बता दीजिए. सिंपल वाला तो आपने बता दिया. yes complex carb is अपना whole grains और bread अपना like जो vegetables है, fruits Okay. एक्चुअली सिंपल कार्ब में आते हैं, लेकिन अभी अपन होल फ्रूट और यदि अपन थोड़ा सा फ्रूट के साथ फाइबर, क्योंकि आप जब होल फ्रूट खाते हो तो उसके साथ फाइबर भी होता है, तो इट्स अ हेल्दी और इट्स अ गुड थिंग कि आप ले सकते Okay. हो, राइट। कि बेटर कि जूस से बेटर है, जूस तो आपको एकदम इंस्टेंट एनर्जी देता है। जनरली Correct. अपन ने नोटिस भी किया सर, यदि कोई हाइपोग्लाइसेमिक है या बहुत यदि बीमार होता है तो अपन उसको जूस प्रेफर करते हैं कि इसका एनर्जी बहुत लो हो गया है, तो आप उसको थोड़ा सिंपल कार्ब दे सकते हैं। ओके Absolutely. सर, या सर। सो अभी हमने प्री वर्कआउट मील एंड ड्यूरिंग वर्कआउट मील एंड पोस्ट वर्कआउट मील भी अपन थोड़ा डिस्कस करेंगे, राइट। पक्का. Right. सो अपन ने कॉम्प्लेक्स कार्ब एंड सिंपल Simple कार्ब carb. right? बिल्कुल. Somebody is asking dry fruits are Dry complex fruits. का। so वो आगे मैं आपको बताऊंगी exactly what is dry fruits. Okay. Correct. So प्री वर्कआउट के लिए आप फ्रूट्स विद नट्स ले सकते हैं एंड वेजिटेबल सैंडविचेस ले सकते हैं, पीनट बटर ले सकते हैं, होममेड एनी लाइक पोहा, उपमा, इडली, एनीथिंग होममेड ब्रेकफास्ट और स्मॉल थेपला। यदि मॉर्निंग में आपको जल्दी निकलना है तो आपने रात को ही अपना थोड़ा सा छोटा जीरा रोटी बना लिया, रोटी और थेपला बना लिया, उसको रोल करके आप खा सकते हैं। इट्स लाइक प्री वर्कआउट, इट्स अ कॉम्प्लेक्स कार्ब। तो आपको एक लॉन्ग Exactly. अपने को ट्रेल के लिए जाना है, अपने को लंबा रन करना है, आपको 1-2 घंटे तक कुछ नहीं है, तो आप एक कॉम्प्लेक्स कार्ब लेंगे तो आपका रिलीज रहेगा, एनर्जी आपका स्लोली मिलता रहेगा सर, राइट। एंड Absolutely. ड्यूरिंग वर्कआउट ऐसा है कि आपको ड्यूरिंग वर्कआउट आपको थोड़ी थोड़ी छोटे छोटे पोर्शन के अंदर आपको एनर्जी मिलती रहनी चाहिए। जब आपका Right. वर्कआउट मोर देन 1 आवर से ज्यादा होता है, जब आप अल्ट्रा रनर हैं या आप वो है आप मैराथन रनर है, Marathon. आपकी रन और हाई एल्टीट्यूड का भी एकदम अलग चलता है। हाई एल्टीट्यूड एंड मैराथन रन आर टोटली डिफरेंट। जो मैराथन Yes. रन में होता है वो आपके हाई एल्टीट्यूड रन में नहीं होता है। इट्स वेरी कि मैं तो रन करता हूँ, मैं मैराथन रनर हूँ, तो हाई एल्टीट्यूड पे सेम चलेगा, सॉरी वो नहीं होगा, राइट। True. आपके बिल्कुल. मैराथन के जब आप मैराथन रन करते हैं आपका फैट मेटाबॉलिज्म होता है, बट हाई एल्टीट्यूड में ऑक्सीजन बहुत कम होती है और फैट मॉलिक्यूल्स एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर लार्ज मॉलिक्यूल्स, सो इट्स नॉट इजी टू डाइजेस्ट और बॉडी का फर्स्ट प्रेफरेंस कार्ब होता है, राइट। Okay. साइंस है, बॉडी को सबसे इजीली यदि कुछ डाइजेस्ट करना है और इमीडिएट एनर्जी चाहिए तो वो सबसे पहले कार्ब को ही Carbs. चॉइस, कार्ब इज द फर्स्ट चॉइस ऑफ First बॉडी, choice.
उसके लिए बट रनर्स में फैट मेटाबॉलिज्म होता है यदि वो नॉर्मल आप सरफेस पे कर रहे हैं, बट हाई एल्टीट्यूड में ऐसा नहीं होता। इट्स अ बेसिक डिफरेंस फॉर रनर्स who think कि हाई एल्टीट्यूड भी सेम रहेगा, वैसा नहीं इजी है, होता है। करेक्ट। आई थिंक सर को समझ में आ रहा है, सर ने बोला हाँ रनर्स आते हैं। नहीं नहीं, हम रनर्स आते नहीं है, बिकॉज आई यूज टू रन अलॉट एंड आई यूज टू हैव दैट कॉन्फिडेंस कि अब पहाड़ तो आराम से चढ़ जाएंगे। जब वहां पे चढ़े तो पहली बार जब पहाड़ चढ़े तो उसके बाद सारे बैटरी डाउन हो गई, बहुत बहुत मुश्किल था। नाउ आई कैन रिलेट इट। रिलेटेड, यस सर। सो एक्चुअली सर ऐसा है कि जब आप करते हो तो आप जब रन करते हो तो नट्स ले सकते हो, बट जब आप यदि हाई एल्टीट्यूड पे हो तो आपको ड्राई फ्रूट्स लेने होते हैं। अब जब एक क्वेश्चन था सर ड्राई फ्रूट्स का, तो मैं बता रही हूँ नट्स एंड ड्राई फ्रूट्स आर डिफरेंट। दुकान दोनों की एक ही होती है, लिखा हुआ रहता है यहाँ ड्राई फ्रूट्स मिलते हैं, पर नट्स और ड्राई फ्रूट्स अलग होते हैं। नट्स आर लाइक आलमंड्स, पिस्ता, कैश्यूज एंड अपने सीड्स जो होते हैं वो सब नट्स में, ऑयल सीड्स एंड नट्स दे आर द फैट, राइट? जो अपन ने तो बचा क्या मैम? ड्राई फ्रूट्स अपना रेजिन्स, डेट्स, ओके, apricot, these are the dry fruits, right? I गॉट think इट। अब याद रहेगा पक्का। जितने भी जो फ्रूट्स जो रेजिन्स होता है कि वो ग्रेप्स को करके बनाया, डेट्स है जो एक फ्रूट है उसको ड्राई करके बनता है। इट्स लाइक जो ये फ्रूट्स जो होते हैं इनको ड्राई करके बनते हैं, इसलिए ये ड्राई फ्रूट्स हैं, राइट? ओके, और जब आप हाई एल्टीट्यूड पे होते हो तो आपके लिए ड्राई फ्रूट्स लाइक रेजिन्स यू कैन हैव डेट्स, यू कैन हैव like black raisins, and you can combine the nuts and dates, like कि आपने थोड़ा 4 almonds ले लिया, एक dates ले लिया, right? तो it's like a complete mixture, आपको एक complete meal का काम करता है, right? ग्रेट, awesome. So आपने को एक जैसे ये सर ने आज बोल दिया 5:30 ही सुबह निकलना है, right? तो सर उस वक्त तो यदि ब्रेकफास्ट और पीनट बटर मैंने बोला तो सर बोलेंगे बाद में मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा। राइट। so you can take just थोड़ा सा आप अपना नट्स ले सकते हैं, आप 2 डेट्स लेके आप अपना ट्रेल स्टार्ट कर सकते हैं, आप थोड़ी रेजिन्स लेके आप स्टार्ट कर सकते हैं। अभी वहां पे केला और बनाना ये सब मिलता है तो सर अच्छी बात है, बट यदि नहीं मिले तो आप इतना खा सकते हैं। हम सुशील सर और आप ही लेके आएंगे फिर सबके लिए ड्राई फ्रूट्स एंड नट्स। हो गया डिसाइड। श्योर सर पक्का, डन। ओके सर, so dry fruits and nuts I covered, and yes. एक सर क्वेरी था मेरे को कि ड्यूरिंग हाइड्रेशन के लिए मैडम नींबू पानी देगी कि क्या देगी, एक था क्वेरी। तो सर yes. मैं तो नींबू पानी भी दे सकती हूँ, कोकोनट वाटर भी दे सकती हूँ, बट आप यदि कैरी कर सकते हो तो सबके लिए कीजिएगा। Got it. Sir, it's not easy to carry. If you can, तो it's actually आप यदि फ्लैट पे हैं, आप रनर हैं, तो it's a perfect you can have कि आपने अपना एक बॉटल के अंदर लाइम वाटर विद जस्ट पिंच ऑफ रॉक सॉल्ट एंड 1 स्पून ऑफ हनी मिक्स करके अपना बना लिया है, तो यू कैन ड्यूरिंग वर्कआउट आप अपना थोड़ा ले सकते हैं। एक्चुअली सर हाइड्रेशन डिपेंड। यस सर, just once. yes sir. Okay, there are a lot of people who wants to ask, who want to ask questions. They are writing. So we'll take it once the session gets over, so that you know the chain of thoughts remain, and it might be that those questions get covered during the interaction. But then don't forget, we'll address each and every question, whatever you are asking. So most welcome to ask, ma'am. Please, sorry, go ahead. Yeah, thank you so much, sir. So, sir, hydration ऐसा है कि exactly according की हाइड्रेशन एक्चुअली क्यों चाहिए, क्यों रन या एल्टीट्यूड या ट्रेल के लिए आपको चाहिए क्यों हाइड्रेशन? वाटर से भी तो रिप्लेनिश हो सकता है ना, राइट? तो हाइड्रेशन नहीं, हमको जब हम कोई ट्रेल या वर्कआउट करते हैं सर, तो उसके साथ अपना ऐसा है कि अपने इलेक्ट्रोलाइट्स का लॉस भी होता है। लाइक इलेक्ट्रोलाइट्स व्हाट? इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, जो बोन के अपना जब अपना वर्कआउट करते हैं तो ये सब इलेक्ट्रोलाइट्स, दे आर द सोडियम, पोटेशियम, दे आर द इलेक्ट्रोलाइट्स, ओके? तो स्वेट के थ्रू ये अपना जब वर्कआउट के साथ जब बहुत स्वेटिंग होती है तो हमें वाटर के साथ हमारा इलेक्ट्रोलाइट्स लॉस भी होता है। तो आपने देखा कि रनर्स को बहुत क्रैम्प आ गया, मसल फटीग हो गया। आज एक स्ट्रेस फ्रैक्चर का भी क्वेरी था। क्वेश्चन था, राइट? यस सर।
सो जब भी आप वर्कआउट करते हैं, आप अपनी इलेक्ट्रोलाइट्स को प्रॉपर प्री वर्कआउट और ड्यूरिंग वर्कआउट आप न्यूट्रिशन नहीं लेते हैं, तो आपको एक्चुअली आपको इलेक्ट्रोलाइट लॉस होता है और उसको रिप्लेनिश करना जरूरी है। आप यदि उनको Okay. रिप्लेनिश नहीं करते हैं तो आपको मसल क्रैम्पिंग आ सकता है, आपको फटीग होता है, आप वो वर्कआउट जो आपको जो अचीव करना है, आप गोल को उस एंथुजियाज्म से अचीव नहीं कर सकते हैं कि सर काला पत्थर पहुंचे तो एकदम एनर्जेटिक रहना चाहिए, ऐसे नहीं कि अरे एकदम गिर गए। बिल्कुल। कि मैं ऐसे ही पहुंचू। नहीं हम पक्का आप पहुंचेंगे। सो एक्चुअली अपने को समझना है कि हमारा इलेक्ट्रोलाइट्स, कि हमारा स्वेटिंग हीट की वजह से गर्मी की वजह से, इलेक्ट्रोलाइट की वजह से हमको हमारा लॉस हुआ है, या हमारा स्वेट की वजह से लॉस हुआ और उसकी वजह से हम डिहाइड्रेट फील कर रहे हैं, तो हमें उसे रिप्लेनिश करना है ओआरएस से, राइट? ओआरएस एंड स्पोर्ट्स ड्रिंक्स, दे आर बोथ डिफरेंट। सो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है? नहीं नहीं मैम बहुत बढ़िया है। मेरे को इनफैक्ट अपने आप रुक गए तो एक क्वेश्चन याद आ गया। जब हम बॉस्टन मैराथन भाग लेते तो रात को किसी का व्हाट्सएप आया वहीं पे कि एनीबॉडी हैविंग सॉल्ट टैबलेट्स, तो आई नेवर यूज्ड टू टेक बिकॉज मैं इतना स्वेट करता नहीं हूं, तो इतना आई नेवर यूज्ड टू हैव। बट व्हाट इज योर टेक ऑन सॉल्ट टैबलेट्स? ये होना चाहिए लॉन्ग डिस्टेंस रनर्स के लिए? सर अगेन मैं बोलूंगी बॉडी टाइप्स एंड डिफरेंट, जिसका यदि लो बीपी रहने का, इट्स लाइक बॉडी टेंडेंसी रहता है कि किसी का लो बीपी रहता है, स्वेटिंग कि आपका उतना स्वेटिंग नहीं होता, आपका इलेक्ट्रोलाइट लॉस कितना होता है। जब भी जनरली हम लोग किसी को पर्सनली गाइड करते हैं तो हम लोग हमेशा उनसे पूछते हैं कि एग्जैक्टली आपका स्वेट लॉस कितना होता है, आपका वर्कआउट कितना होता है, आपका ड्यूरिंग वर्कआउट आप क्या क्या दूसरी चीजें खा रहे हो, आप यदि फ्रूट्स ले रहे हो या आप क्या ले रहे हो, तो एग्जैक्टली उसके अकॉर्डिंग आपका एवरी मील डिसाइड होता है सर। सो एक्चुअली दैट्स व्हाई मैंने फर्स्ट क्लियर किया था कि स्पोर्ट्स डाइट इज वेरी पर्सनल। यहाँ पे जो भी ज्ञान दिया जा रहा है वो एकदम लेमेन वाला है, तो इसको आप कुछ भी वो ना समझे कि यही डाइट है। एग्जैक्टली इट्स वेरी नॉर्मल वाला ज्ञान है। सो इट्स लाइक ओआरएस है जो आपके बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट्स को रिप्लेनिश करता है, राइट? जो आपके सोडियम और व्हाट इज स्पोर्ट्स ड्रिंक? स्पोर्ट्स ड्रिंक्स लाइक गैटोरेड, और सब लोग स्पोर्ट्स जेल भी लेते हैं, एंड तो वो आपको इसलिए होता है कि समटाइम्स ऐसा है कि उतना कोई प्री वर्कआउट नहीं खाता है, कि किसी को ऐसा लगता है कि मैं इतना खा के मैं रन ही नहीं कर सकता, राइट? यदि किसी को मैंने बोल दिया सैंडविच खा के, नहीं मैडम मैं इतना खा के मैं नहीं रन कर सकता, मेरे को लाइट करने की आदत, मुझसे नहीं भागा जाता है, मेरे से इतना खा के भी मेरे से नहीं होता है, तो एक्चुअली यदि उसको आपको उसका फ्यूल भी मतलब लो होता है, राइट? आजकल अब देखते हैं कि जैसे आप ट्रेल पे भी जाते हैं तो आप देखते हैं कि कोई लोग ऐसा है कि भाई अब मुझसे नहीं चला जा रहा है, तो इलेक्ट्रोलाइट लॉस नहीं सर, वो एनर्जी लॉस है। सो एनर्जी लॉस के लिए यू हैव टू गिव सम स्पोर्ट ड्रिंक, स्पोर्ट्स एनर्जी जूसेस। हाँ सर, वैसे ही जैसे रैबिट सो गया था ना, वैसे सर टॉर्टोइज को यदि सिंपल कार्ब मिल रहा तो और भी तेज भागता था। Got it. So that is what you meant by जो हम बोलते हैं मैराथन वॉल हिट कर देते हैं जैसे 32-34 किलोमीटर में। Exactly, it's like hitting the wall, sir. Hitting wall के लिए फ्यूल रिप्लेनिश होना जरूरी है, आपको फ्यूल इनटेक होना जरूरी है सर। इज द वेरी बेसिक डिफरेंस, क्योंकि जो स्पोर्ट्स ड्रिंक होता है उसमें 6 to 8% कार्ब होता है। इट्स डिफरेंट टू डिफरेंट, सब रनर्स के लिए अलग होता है। अगेन सर स्पोर्ट्स यदि आप लेने जा रहे हो इट्स वेरी डिफरेंट। कि यदि आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग में हो तो आपको अलग कार्ब की जरूरत है, बट जस्ट मैराथन रनर्स या ट्रेल रनर के लिए यू शुड हैव 6 to 8% ऑफ कार्ब वाला गैटोरेड ड्रिंक यू कैन टेक। मैं कोई गैटोरेड को नहीं पढ़ रही हूँ, एनी स्पोर्ट्स ड्रिंक जो आप ले सकते हो, जो अवेलेबल है आप ले सकते हैं। सो इट्स लाइक स्पोर्ट्स ड्रिंक। और नींबू पानी भी जो ला सकता है, कोकोनट वाटर भी ला सकता है, उसके लिए भी एब्सोल्युटली एग्री हूँ, मैडम बिल्कुल एग्री कर रही है, आप नींबू पानी जरूर पीजिए, इट्स परफेक्टली फाइन। ओके सर, सो एब्सोल्युटली yes, BCAA is also good. BCAA is like उसमें शुगर कम रहता है, एक एनर्जी बूस्ट करने के लिए बेस्ट है। ओके,
सो पोस्ट वर्कआउट यू हैव टू ईट, आपको पोस्ट वर्कआउट क्या खाना है जब आपका हो जाता है कि हाँ मैं ट्रेल पे पहुंच गया हूँ, हाँ मेरी आज की खत्म हो गया है, या डिनर का टाइम है, या मुझे पोस्ट वर्क, तो इट्स अ कंप्लीट कार्ब, आपका कार्ब लॉस होता है और साथ में अब आपका मसल लॉस, अभी आपको मसल को भी रिप्लेनिश करने की जरूरत है कि जेन्युइन आपको थ्रू आउट द वर्कआउट आपका प्रोटीन, आपका मसल ब्रेकडाउन भी हुआ है, राइट? अभी यस मसल ब्रेकडाउन हुआ है तो इस नाइट अभी बिल्डिंग का टाइम है, राइट? अभी आपको बिल्ड करना है, आपको अमाइनो एसिड जो सब वो जो लो हो चुका है उसको वापस आपको बनाना है। तो इसलिए कंप्लीट प्रोटीन का फैट वाला एक कंप्लीट मील होना चाहिए पोस्ट वर्कआउट। सो द बेस्ट फूड इज दाल भात जो अवेलेबल है अपने करेक्ट घर, राइट? क्योंकि सर बिल्कुल वही बात करना चाहिए जो अवेलेबल हो, आई बिलीव इन दिस, राइट? कि यहाँ करेक्ट पे किसी को मैं सपने नहीं दिखाने वाली हूँ कि सब्जी रोटी इज लाइक रागी रोटी, नो, दाल भात इज द परफेक्ट करेक्ट मुझे नहीं चाहिए सर ईबीसी में कोई बोले मैडम आपने वो बोला था, दाल भात इज द हाँ परफेक्ट तो सर दाल भात इज द परफेक्ट मील सर, ऐसा नहीं है एग्जैक्टली दाल भात इज द परफेक्ट मील। वो मैं आपको बताती हूँ क्योंकि जनरली लोगों को क्या लगता है कि जो प्लांट प्रोटीन है वो इनकम्प्लीट प्रोटीन है। जैसा मैंने पहले प्रोटीन जब बताया आपको तब मैंने बोला था कि इज लाइक प्लांट प्रोटीन इज इनकम्प्लीट प्रोटीन, राइट? ओके लाइक कंप्लीट प्रोटीन होता है, लाइक अपन एनिमल प्रोटीन को हम कंप्लीट प्रोटीन बोलते हैं, एग को कंप्लीट प्रोटीन बोलते हैं। इट्स लाइक एनिमल प्रोटीन इज कंप्लीट प्रोटीन एंड प्लांट प्रोटीन इज इनकम्प्लीट प्रोटीन। बट ओके सर जो अपना जो दाल है वो लाइसिन रिच होता है एंड जो अपना राइस है वो मिथ्योनाइन रिच। ओके मैं स्टार्ट से बताती हूँ। टोटल ज्यादा 20 अमाइनो टोटल 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं सर। टोटल ओके 20 अमाइनो एसिड्स में 11 अमाइनो एसिड्स जो बॉडी के लिए नॉन एसेंशियल है कि क्योंकि वो ओके बॉडी खुद बनाती है। देन 9 अमाइनो एसिड्स ऐसे होते हैं जो हमको डाइटरी खाने होते हैं, जो ओके यदि उसमें से एक भी इनकम्प्लीट होता है तो अपना जो कंप्लीट बिल्टअप, यदि अपने को बिल्डिंग बनानी है या मसल बिल्ड करना है तो 9 अमाइनो एसिड्स होने जरूरी है। तो ऐसा ओके है कि जो अपना दाल है उसमें मिथ्योनाइन लेस होता है एंड जो राइस जो दाल है वो लाइसिन रिच होता है। तो दिन दाल ओके और भात जो जब कंप्लीट होता है तो इट्स लाइक अ कंप्लीट मील। ओके तो केवल दाल भी नहीं खाना है, केवल राइस भी नहीं होना है, दाल में भात मिला के फिर खाना है तो आपको कंप्लीट प्रोटीन एंड कंप्लीट मील मिलेगा सर, राइट? हम बेकार में इतना प्रोटीन पाउडर खाने पर लगे अगर दाल भात में सब मिल रहा है, दिस इज बैड। सर आप देखिए ना सर, आपके साथ जो शेरपा वगैरह जाते हैं वो लोग क्या खाते हैं सर? यस नो यस सर। इनफैक्ट आई लाइक टू शेयर जब हम एवरेस्ट पे जा रहे थे तो हम तो वो टिपिकल वही रहते कि आज एक बार जो मिल गया तो उसके बाद अगला मील कब मिलेगा। वी यूज्ड टू हैव बर्गर फ्रेंच फ्राइज पिज्जा सब कुछ खा रहे हैं एवरेस्ट बेस कैंप पे एंड यूज्ड टू सी दिस शेरपास जो वहां पे हमारे साथ है दाल भात खा रहे हैं और उसके बाद इतना हेवी हेवी लोड कैरी कर रहे हैं 60 केजी वाला हमसे 3 गुना कैरी करता था। सो दैट्स अमेजिंग आई कैन अंडरस्टैंड। दाल भात में ताकत है ग्रेट ओके सर। सो एक्चुअली सर इट्स नॉट अबाउट दाल भात या अपना एक्चुअली एवरीथिंग जो इंडियन फूड है या एवरी एंसेस्ट जो अपने बोलते हैं ना जनरेशन टू जनरेशन आया है वो टेस्टेड है कि उन लोगों ने शेरपा लोगों ने कुछ लाइसिन या मिथ्योनाइन ये सब नहीं रिसर्च किया है। उन्होंने खा खा के उन्होंने ये डिसाइड किया यस दिस इज गुड, ये मेरे लिए अच्छा है और इससे मैं अच्छा परफॉर्मेंस कर पा रहा हूँ। तो दिस इज द ट्राइड एंड टेस्टेड। ओके सो जो भी अपना इंडियन फूड होता है वो ट्राइड और टेस्टेड होता है सर। मैं एग्जैक्टली ट्राइड एंड टेस्टेड के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं लेकिन मैं शॉर्ट में थोड़ा सा मतलब जो अपने प्री वर्कआउट के लिए या पोस्ट ड्यूरिंग वर्कआउट काम आ सकते हैं या हाई एल्टीट्यूड वाले हैं वो मैं आपको जनरल में शॉर्ट में बताऊंगी कि जैसे बद्रीश लड्डू जो जनरली बद्रीनाथ में जाते हैं तो एक कुरमुरा और जैगरी का एक लड्डू बना के मिलता है या जनरली आप हाई एल्टीट्यूड के जितने भी देखो वैष्णो देवी में जाओगे तो प्रसाद में कुरमुरा रहता है, उसमें थोड़ा मखाना रहता है। तो ये प्रसाद ऐसा नहीं और बाकी आप कहीं जाओ नहीं मिलता है ये प्रसाद, ये केवल हाई एल्टीट्यूड के जो टेम्पल्स है वहीं पे मिलता है। ये ऐसा नहीं है कि माता जी ने एक दिन आके बोला है कि बच्चा को यही मिलना चाहिए। सो एक्चुअली
जब लोगों ने ये गए और उन्होंने खाया और दे फील कि यस सर, ये तो आई थिंक सबको पता होगा कि जब भी लोग एल्टीट्यूड पे जाते थे, गंगोत्री या चार धाम जब करने जाते थे, सब लोग एक राइस का पोटली लेके जाते थे, जो यमुनोत्री के जो हॉट स्ट्रीम होता है उसके अंदर Right. गर्म धारा में वो लोग बॉईल करते थे, और दे जस्ट ये कहानी वो आके अपने बच्चों, ग्रैंडसन, हाँ सबको बताते थे कि हमने वो करेक्ट, पोटली में चावल गरम और उबाले और हमने वो और चावल एकदम हो खाए। गया। बिल्कुल सर, और उनको ऐसा लगा कि करेक्ट, उनका कंप्लीट मील हो गया था कि, और दैट टाइम उन्होंने इतना एल्टीट्यूड पे चढ़ाई की और उन्होंने वो चावल गरम गरम वहीं पे बनाया और वहीं पे खाए। तो सर वाई दे चावल, कुछ भी तो ले जा सकते थे ना, वो और भी कुछ भी ले जा सकते थे, बाजरा ले जा सकते थे, कुछ भी ले जा सकते थे, उन्होंने वो क्यों लिया? बिकॉज ऑफ कि द वे उन्होंने ट्राइड किया, उन्होंने टेस्टेड किया और दे फाइंड कि यस दिस इज द बेस्ट, और वो अब उन्होंने अपनी नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर किया कि यस दिस इज द बेस्ट। तो बॉइल्ड एग्जैक्टली चिकन ले जाना था, चिकन डाल के खा लेते वहां पे। फिर वो सर दिन शायद आई उन्होंने एम वो श्योर, ट्राई किया, शायद उन्होंने वो ट्राई किया आई होगा एम श्योर। सर, शायद फिर उन्होंने, हो राइस, सकता है कि वहां पे खराब हो गया हो, है ना, वो भी तो राइट हुआ राइट, होगा गॉट सर। इट, तो कुछ तो हुआ होगा सर, इसके लिए वो परफेक्ट, चावल ही लेके गए। सो एग्रीड, परफेक्ट, एग्जैक्टली सर। एक्चुअली वैसे ही सर, जैसे अपन जाते हैं, अपन देखते हैं कि जब ट्रैवल की रोटी बनती है तो हम लोग लेडीज लोग ऐसा करते हैं, आपको कब पता होगा सर, कि उसमें थोड़ा अजवाइन डालते हैं, जिससे ऐसे कि वो ओके, ट्रैवल की रोटी अच्छे से डाइजेस्ट हुए, राइट। यस, सो इसके लिए ऐसा रहता है कि हम उसके सो एवरीथिंग इज, क्या हम लोगों के एंसेस्टर्स ने बताया है कि आप ऐसे खाओ, दिस इज द वे, दिस इज द राइट वे ऑफ ईटिंग, राइट। बट हमने उसका पिज्जा पास्ता कर भूल दिया। गया, गॉट इट, सो और सर बेस्ट एग्जांपल तो सर हल्दी दूध है सर। हल्दी दूध तो अभी पूरी दुनिया ने पी पी के नो द बेस्ट ड्रिंक बना दिया, करेक्ट, नो curcumin latte। ठीक है, yes। वेरी राइट, सो एक्चुअली हम हमारी रूट से जुड़े हुए नहीं हैं, हमें हमारी रूट से जुड़ा हुआ होना चाहिए, हमें हमारे एक्चुअली हमें हमारे जो, सीरियसली सर अभी सीजन कौन से फ्रूट का है लोगों को नहीं पता होता है जनरली। हाँ, ये जो आ गया, जो सब्जी वाले ने लाके एकदम, जो आप लोकल, और आप एकदम लोकल वाले से जाके पूछो अभी क्या सीजन है, या अभी आपके इस एरिया के अंदर, आप महाराष्ट्र में हो तो आपको जाम्बुल मिलेगा, मतलब ये सब छोटी छोटी चीजें हर सीजन में। तो आपको अपने आप ही इतनी डाइवर्सिटी है, अपने आप ही इतनी तरह की दालें हैं, इतनी राइस है, तो यू नो हमें उन सबको खाना चाहिए। क्यों केवल तुअर दाल ही खाते हैं? द कुलथ इज ऑसम, कुलथ ट्राई राइट, कीजिए, मसूर दाल। अपने यहाँ इंडिया में बहुत वैरायटी है, हम लोगों को इंडिया में जो डाइवर्सिटी है उसको एंजॉय करना चाहिए। आई वांट टू से दिस, वेरी ट्रू, तो जितना आप एब्सोल्युटली, एंजॉय, एग्जैक्टली सर। एंड लास्ट एंड नॉट लीस्ट, आई वांट टू से स्लीप। स्लीप जैसे मॉर्निंग में भी अगेन स्ट्रेस फ्रैक्चर के लिए आया था, जो भी स्पोर्ट्स पर्सन है, आप लोग सबके लिए बोलना चाहूंगी, स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्लीप, बट आजकल थोड़ा स्लीप का मिसकैलकुलेशन है सर, वैसे ही है कि 7 से 8 घंटे सोना, चाहे मैं दोपहर में सोऊं, चाहे रात को सोऊं, चाहे नेटफ्लिक्स देख के सोऊं, इट्स नॉट लाइक दैट सर। आप तो नहीं ओके, सोते हैं, आप तो टाइम पे सो जाते हैं, बट बहुत से लोग हैं जो रात को 3 बजे सोते हैं और बाद में 10 घंटे बाद उठे, अरे मेरी स्लीप पूरी होती है। पूरी हो गई, आपकी स्लीप वैसे पूरी नहीं होती है, स्लीप का भी एक ओके, टाइमिंग्स होते हैं। सो सोना कैसे है, आपका प्रॉपर रिकवरी। स्लीप इज नॉट कि हाँ कैसे भी ले लो, ये भी एक, स्लीप भी एक मेडिसिन है, आपको कैसे लेना है वो आपको समझना होता है। स्लीप ओके, एक बोलते हैं एक वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमिना है, आपके ग्रोथ हार्मोन्स, आपका सेल रिपेयर, डाइजेशन एंड लर्निंग, मेमोरी, एवरीथिंग, हार्ट रेट, ब्रीदिंग, ब्लड प्रेशर, एवरीथिंग जो बोलते हैं ना, इट्स लाइक रिपेयरिंग का काम होता है ये टाइम पे। जो भी आपने दिन भर में किया है, आपने नेगेटिविटी, पॉजिटिविटी, मतलब किसी से झगड़ा वगड़ा भी करके आया हो, तो सब कुछ कामनेस आपके नींद में होता है। सर कुछ सोच रहे हो आप? नहीं मैं नोट्स बनाए, मैं वही देख रहा हूँ आपने जो बताया, सर, सो एक्चुअली सर स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका राइट, स्लीप लेना कब है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है सर। सो एक्चुअली आपको स्लीप 10 to 5 is the right time,
कि आपको सोना चाहिए कि आप 8 o'clock, आप 10 o'clock सोइए, मॉर्निंग में 5 o'clock। दिस इज द मेन टाइम जिस टाइम आपकी बेस्ट रिकवरी होती है, राइट। सो ओके सो अभी REM एंड NREM, अभी ये थोड़ा सा तो कॉम्प्लिकेटेड टर्म है, लेकिन मैं आपको अच्छे से बताना चाहूंगी क्योंकि स्लीप के लिए इसको समझना बहुत जरूरी है। लाइक ओके इज लाइक NREM का मतलब होता है नॉन रैपिड आई मूवमेंट। इट्स लाइक जब आप ओके आईज को क्लोज करते हो, तब आप क्लोज करते तो भी आपके जो अंदर की जो आईज है वो मूव करती रहती है, राइट। आप ओके आईज क्लोज करके फील कर सकते हैं सर कि आपकी आंखें ऐसे अलग हिलती रहती है, उसको बोलते हैं रैपिड मूवमेंट ऑफ आईज। ओके, जब आप स्लीप में होते हो आपका नॉन रैपिड आई मूवमेंट के अंदर NREM में जाना जरूरी है। ओके, NREM ओके की 3 स्टेजेस होती है सर, N1, N2 एंड N3। ओके, ओके N1 एक स्लीप का टाइमिंग है जिसके टाइम आप एग्जैक्टली आप सोने की तैयारी करते हो, आप हाँ आप अब सोने वाले हो। N2 मैक्सिमम स्लीप अपनी जो होती है वो N2 के अंदर होता है, जिसमें जस्ट वी स्टार्टेड स्लीपिंग, और इसका में मैक्सिमम टाइम निकलता है। N3 होता है द डीप स्लीप, जब आप ओके एकदम अच्छे से सोते हो, जिसको बोलते हैं घोड़े बेच के सोते हो, राइट। राइट लाइक स्लीप लाइक अ चाइल्ड, कि आपको जब कोई उठाए दैट टाइम आपका ब्लड प्रेशर, आपका एवरीथिंग एकदम लो रहता है। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा BP लो हो जाता है, मुझे तो पता ही नहीं, मतलब अच्छा डेंजरस नहीं है वो, बट राइट इट्स वेरी गुड। आपकी ये रिपेयरिंग का टाइम है, तो बेस्ट थिंग कि आप N3 में होता है, लेकिन ये बच्चों में सबसे ज्यादा होता है, बट ग्रेजुअली ओके जैसे जैसे आपकी एज होती जाती है आपका N3 कम होता जाता है, राइट। ओके बस उसके लिए ऐसा सिंपल है सर, जो भी आप कमाते हो वो सब अपनी बीवी को दे दो और आप आराम से सो पाएंगे। सही बात है द बिल्कुल बेस्ट वे है, मैम और फिर उसकी नींद उड़े तो उड़े, पर हम तो आराम से सो सके और टेंशन फ्री सो सके, द बेस्ट वे, राइट सर। तो गॉट इट अभी है कि अपन ने NREM और REM तो अच्छे से समझा, बट NREM में राइट जाना कैसे है, राइट। ओके NREM में जाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए कि NREM में कि हम सबसे हमारी आंखों के सामने जब तक व्हाइट लाइट्स रहती है, व्हाइट लाइट्स ओके कैसे आती है हमारे सामने, जब हम लैपटॉप के सामने रहते हैं, हम मोबाइल के सामने रहते हैं, या टीवी के सामने रहते हैं। हम तो इसलिए नहीं बोले, हम बोले रात भर आप टीवी क्यों देख रहे थे, हमको नींद नहीं आ रही थी। जब तक आप टीवी देखते हो आपके ब्रेन को यही मैसेज जाता है कि भाई जगना है। जब तक व्हाइट ओके लाइट रहती है आपके मैसेज ये रहता है यू हैव टू बी एक्टिव, और जब तक आप एक्टिव हो आपको नींद नहीं आएगी। नींद नहीं और आपको जब तक नींद नहीं आती है आप स्ट्रोल आप करते जाते हो, व्हाट्सएप मैसेजेस चेक करते जाते हो, इंस्टा स्टोरीज देखते जाते हो। तो जब तक आप स्टोरीज देख रहे हो, जब तक आप ये कर रहे हो, तब तक आपको नींद नहीं आने वाली है, राइट। सो यू हैव टू स्लीप। आपको सोने के लिए आपका मोबाइल साइड में करना पड़ेगा, आपका टीवी बंद करना पड़ेगा, आपको चाहिए तो आप कोई बुक रीड करिए, आप म्यूजिक सुन सकते हैं, एंड रूम के अंदर भी थोड़ा ऑरेंज लाइट लगाइए। यू विल फील कि आपका एक स्लीप है पैटर्न बहुत अच्छा हो गया, आपको जेन्युइनली आप फील करोगे कि मुझे वाकई में नींद आज बहुत अच्छी आई है। सम टाइम्स अपन सो के भी उतना फ्रेश नहीं होते हैं, राइट। करेक्ट हमको ऐसा लगता है कि हम नहीं सोए तो अच्छे से थे, बट हमारा नींद अच्छे से पता नहीं कुछ तो आज गड़बड़ था, ये अपने को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते एग्जैक्टली हुआ क्या। हुआ ये कि हम लोग जब व्हाइट लाइट करते थे, तो हम लोग जब सोए थे तब भी हम REM में थे, रैपिड आई मूवमेंट में थे। सो राइट NREM में जाने के लिए आप ऑरेंज लाइट कीजिए, मीडिया डिटॉक्स कीजिए। डिटॉक्स डाइट करते हैं लोग, मैं बोली डिटॉक्स डाइट मत कीजिए, मीडिया डिटॉक्स कीजिए, राइट। आप मीडिया डिटॉक्स एब्सोल्युटली करते आप मीडिया डिटॉक्स करते हैं तो बेस्ट वे है कि आपको नींद अच्छी आती है, राइट। सो द बेस्ट वे टू स्लीप, और स्लीप इज द बेस्ट आपका रिकवरी। आपको इंजरी नहीं, आपने यदि प्रॉपर हाइड्रेशन किया है, आपने अच्छे से ओके वर्कआउट किया है, सब कुछ किया है, मैंने स्ट्रेचिंग भी किया, मैंने वर्कआउट भी किया, मैंने सब कुछ किया, बट स्टिल मेरे को क्यों इंजरी हो गया, इसमें भी आपका रिकवरी प्रॉपर नहीं हुआ था। जब आपको ओके एवरीडे आपको लॉन्ग रन करना है, आपको ट्रेल करना है, या आपको अल्ट्रा मैराथन करना है, तो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपका स्लीप अच्छा हो। और यदि आपका स्लीप अच्छा नहीं है, आपका वर्कआउट नहीं अच्छा होगा। तो स्लीप इज मैंडेटरी, आपको सोना है।
ठीक है। एंड लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट, जो स्ट्रेस फ्री लाइफस्टाइल, आपको स्ट्रेस नहीं रखना है, आपको नेगेटिविटी नहीं रखना है, आपको पॉजिटिव रहना है, आपको ग्रैटिट्यूड रखना है, आपको एक लव अफेक्शन रखना है, राइट। आप मतलब आए हो दुनिया में तो सबको थैंक्स करो कि यस, सबका कंट्रीब्यूशन है आपके किधर भी होने में, आप जहाँ पे भी हो तो उसमें सबका कंट्रीब्यूशन है। सो ग्रेटिट्यूड होना चाहिए आपके लिए, सबके लिए, एक अफेक्शन, एक लव, एक फैमिली में। आपको मेडिटेशन करो मतलब, बट यू हैव टू बी स्ट्रेस फ्री, एक कंटेंट होना चाहिए। सो कंप्लीटली द 4 pillars like sleep, exercise, nutrition and stress free lifestyle, these are the 4 pillars। बहुत मेरे को जबरदस्त। एक क्वेरी था सर, मैं यंग कैसे रहूं और हमेशा फिट कैसे रहूं, तो सर दीज आर द 4 pillars। द फर्स्ट क्वेश्चन था सर, एक क्वेरी था कि मैं ओके। हमेशा यंग और फिट रहना चाहता हूँ, तो उसके लिए बेस्ट है सर, आपके चारों बैलेंस होने चाहिए। आपका न्यूट्रिशन बैलेंस होना चाहिए, आप एक्सरसाइज करने चाहिए, आपका स्लीप अच्छा होना चाहिए और आप स्ट्रेस फ्री होने स्ट्रेस फ्री। चाहिए। पक्का आप यंग रहेंगे हमेशा। मैम आपको बाबा बन जाना चाहिए मैम, न्यूट्रिशनिस्ट तो ठीक है। नहीं नहीं, टू गुड मैम, अमेजिंग। Awesome, thank you sir। मतलब मैं हिमालय में रह जाऊंगी सर अब तो। नहीं 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 मैम, वो बात अलग है, लेकिन हम वापस लेंगे, बट देन द वे यू एक्सप्लेन्ड, यू नो, क्रिस्टल क्लियर, यू नो, ऑल द थिंग्स रिवाइज करा करा के आपने बिल्कुल दिमाग में ड्रिल कर सर दिया। एकदम बेसिक आइडियाज है सर, एकदम बेसिक सर। मैम बेसिक चीजें समझ नहीं आती ना, हमें वही यस रहता है सर। कि कितने सीड्स ब्रेकफास्ट में करने हैं, कितने हमने हाँ, सैलेड्स खाने लंच में, सो दैट्स द प्रॉब्लम, राइट। फाइन। उनसे ज्यादा हम इम्प्रेस हो जाते हैं उन चीजों से। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैम we'll take the questions now if you permit. यस सर, यस सर, यस सर। I'll just scroll up and see the questions. So uh, we'll start from, बहुत ज्यादा हो गए शुरू से आज। So we start and तो ऐसे ही था, गौरव त्रिवेदी, all going good, Dhoni, good evening, Mountaineer. So और क्या था, some hello hi hello hi 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 hi. मैम आप तब तक उसका बताइए, इंटरमिटेंट फास्टिंग का, आजकल सब लोगों को आईएफ पूछते यस रहते हैं कि व्हाट इज सर, आईएफ। सर फैट डाइट तो फन है सर, मेरा तो फेवरेट टॉपिक है फैट डाइट। हाँ मैम बताइए, आई विल जस्ट सर्च द क्वेश्चंस टिल देन। सर इज लाइक, फैट डाइट इज लाइक कि मैं घर में खाना है फिर भी खाना नहीं खाऊंगी, मैंने डिसाइड किया ओके मैं भूखी रहूंगी। और लाइक कि बस इंटरमिटेंट फास्टिंग शुरू कहाँ से होती है, एनी फैट डाइट सर, एनी फैट ओके डाइट शुरू होती है 3 गोल्डन वर्ड सर, ये मेरा अपना ओके रिसर्च है कि आदमी फैट डाइट करता क्यों है। फैट डाइट करता है ओके 3 गोल्डन वर्ड्स के लिए। वो 3 गोल्डन वर्ड्स है सर, तुम पतली हो गई है या तू पतला हो गया है। सर ये सर आप किसी को मत बोलो कि तू कैसी लग रही है, आपने किसी को यदि एक बात बोल दी कि तू पतली हो गई है तो बस अच्छा है, वेरी गुड, मतलब अलग ही खुशी अलग आ जाती है सर। खाना और पीना छोड़ देते हैं। एग्जैक्टली मतलब जो चल रहा है, हेल्थ गई मेरी भाड़ में, मेरे क्या पैरामीटर से मैं वर्कआउट कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ, भूखी मरूंगी बस ये कॉम्प्लीमेंट के लिए कि मैं पतली हो गई हूँ बस। सर कोई भी आप फिजिकल अपीयरेंस से देख के आप नहीं बता सकते हैं कि वो अंदर से कितना डेफिसिट है, उसकी न्यूट्रिशन राइट, डेफिशिएंसी कितनी है। इज नथिंग अबाउट वेट लॉस, और ये वेट लॉस इंडस्ट्रीज इसके लिए चल रही है, द 3 गोल्डन वर्ड्स, पतली हो गई, पतली हो गई। बस पतले हो जाए। कुछ भी हो जाए अंदर से, ना कैन बिलीव सर कि लोग बाग दिख रहे हैं पतले बट उनके कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हैं, प्री डायबिटिक्स राइट, हो रहे हैं, बट दे डजंट केयर कि बस सर मैडम बस एक ही चीज हो जानी चाहिए, पतले हो जाने चाहिए। पतले ऐसे होने के। थोड़ी होता है, ऐसे नहीं होता है, यू शुड बी हेल्दी। स्पेशली मैरिज, मैरिज से पहले होता है मैम, 4 महीने है मैरिज के लिए, एग्जैक्टली 3 महीने ब्रदर की में। मैरिज होनी है। सर 3 महीने में हो जाना है सर, ऐसे थोड़ी होता है सर। करेक्ट। एक्चुअली सर आज एक बहुत अच्छा एक पोस्ट था इंस्टा पे,
माय फ्रेंड भुवनेश ने पोस्ट किया था, इट्स सच Okay. ब्यूटीफुल कि पोस्ट ये था सर कि मैं क्या हूँ ये आप कैसे डिसाइड करोगे, राइट? मैं क्या हूँ, मेरे बच्चे के लिए मैं कुछ और हूँ, मेरे हस्बैंड के लिए मैं कुछ और हूँ, मेरे पेरेंट्स के लिए मैं कुछ और हूँ, राइट? सो बिल्कुल मैं क्या हूँ वो मुझे पता है, बट ईच एंड एवरी पर्सन मेरे लिए कुछ अलग सोचता है। इवन सर यदि राइट मैं रोड पे जा रही हूँ, मैं मतलब अननोन, मुझे जानता भी नहीं है, बट यदि सर एवरेस्ट कैंप से आए हैं और सर एकदम थके हुए आ रहे हैं, द पर्सन आपको जानता भी नहीं है, उसने भी आपको देखा और आपके लिए उसने एक सोच बना ली, राइट राइट? उस हर आदमी, हर जब भी किसी को देखता है, मिलता है, वो उसके लिए सोचता है, पर वो एग्जैक्टली वैसा होता ही नहीं है जैसा जो सोचता है। इज एवरीथिंग डिफरेंट? सो करेक्ट इट्स थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, बट आई वांट टू से कि कोई क्या सोचता है ये कभी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आप क्या सोचते बिल्कुल हो ये फर्क पड़ना चाहिए, क्योंकि आप ही अपने आप को जानते हो, आपकी पास्ट जर्नी, आपके जेनेटिक्स, आपका वर्कआउट, आप क्या कर रहे हो, आपके गोल्स क्या हैं, आप आगे क्या करने वाले हो। हो सकता है जो आपको दिख रहा है कि हाँ ये पतला हो रहा है, वो उसका डाइट का लास्ट डे है, और वो कल से खाने वाला है, परसों से मोटा होने वाला फिर है। से चेंज होना राइट और सो एक्चुअली आपको अपना खुद का पता होना चाहिए, हमेशा अपने गोल्स पता होना चाहिए, कभी भी किसी और को मत अलाउ करो कि वो आपके लिए डिसाइड करे। जब कोई और डिसाइड करेगा कि आपको क्या खाना चाहिए और आप कैसे दिख रहे हो, आपके लुक्स कैसे हैं, तो किसी और को अलाउ मत करो। आप अपनी एनर्जी से डिसाइड करो, आपके वर्कआउट से डिसाइड करो, अपनी स्टेमिना से डिसाइड करो, हाउ यू फील। आप खा के या वर्कआउट करके, सर आप जब एक्सरसाइज पे वर्कआउट करके जब आते हैं, वी फील लाइक ओह वाओ, हमें बहुत मजा सही बात आया, है राइट? तो ये एब्सोल्युटली अपनी एक्सपीरियंस है, ये अपने को होना चाहिए। लेट देम कि कोई और अपने को डिसाइड कर रहा है कि आपको ये करना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये फैट डाइट्स जो शुरू होती है, ये यहीं से शुरू होती है कि तू कैसा दिख यस रहा है, आप दूसरों को आप ये मौका देते हो कि वो अपना डिसाइड करे कि आपका वेट क्या होना चाहिए या आप दिखने कैसे चाहिए। एवरीवन इज यूनिक सर, सबका अपना यूनिकनेस है, और ये कॉम्प्लीमेंट ही नहीं होना चाहिए। ये ग्रीटिंग भी क्या होता है सर, तू पतली हो गई, ये ग्रीटिंग है क्या सर? तू मोटी हो गई, ये क्या ग्रीटिंग है क्या सर? अयो, आपसे मिलके अच्छा लगा, दिस इज द ग्रीटिंग, राइट? करेक्ट आपसे बात करके अच्छा लगा, दिस इज द ग्रीटिंग। आई थिंक कि यही नहीं होना चाहिए, आपकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, यू शुड फील स्ट्रेंथ। आप एक स्ट्रांग वुमेन हो कि यस, तो ऐसा लगना चाहिए यस वुमेन्स डे सेलिब्रेट किया। वेरी नाइस राइट? तो चलो आई बिलीव दिस। वेरी so there's one question ma'am which says that are nuts and dry fruits okay to be taken before a marathon या परफेक्टली यू कैन। ले सकते हैं ना मैम मैराथन से बिल्कुल पहले ले सकते हैं, नट्स बिल्कुल बिल्कुल। वेरी गुड आपका बीसटी डिपेंड, आप हाँ यस मैम सॉरी आप ले बोलिए सकते। नट्स यदि आपका डिपेंड करता है कि आपका रन कितना बड़ा है, आपको यदि आपका 4 आपका अल्ट्रा रन है, तो तो आपको थोड़ा, आपको कार्ब ज्यादा लेना चाहिए, आपको प्रॉपर रोटी लेना चाहिए, नट्स, एंड आपको ड्यूरिंग रन लेना चाहिए। एंड आपका जब रन, यदि आपको है कि वर्कआउट आपका 30 मिनट्स का है, ड्रीम रन करने निकले हो और 5 ओके किलोमीटर का रन है, तो नट्स बहुत है। नाइस इट डिपेंड्स अच्छा ऑन ऑन वर्क। दिस करेक्ट वर्कआउट पे भी there's someone who wants to know can dinner be heavy some people say ना कि डिनर लाइट होना चाहिए ये हेवी होना चाहिए is it any सर सर एवरीथिंग 3/4 फुल, जो मैं पहले बोल चुकी हूँ। got it so that's okay राइस का somebody is asking whether it should be white rice or brown rice ये भी मैम बता दीजिए जरा इसका सर क्या है कहानी सर ब्राउन राइस एक्चुअली डिपेंड कलर, इसमें बहुत से एक्चुअली एडल्ट्रेशन चल रहे हैं। सो ओके एक्चुअली हैंड पॉन्डेड सुरती कोलम, जो आपकी मतलब आपके एरिया के, आप यदि साउथ में हो तो एकदम जो रॉ लोग जो खाते हैं वैसा, जितना हैंड पॉन्डेड और उतना अच्छा राइस होएगा। इट मे बी रेड राइस भी लोग खाते हैं, रेड राइस इज ऑल्सो गुड, बट ओके बेटर सुरती कोलम, अपना नॉर्मल राइस, जितना राइस का दाना छोटा है बेटर, आपके एरिया का, आपके लोकल एरिया का जो बेस्ट है वो बेस्ट है सर।
ग्रेट। सो लोकल इज बेटर रादर देन कि आप दिल्ली से बॉम्बे मंगा रहे हैं या यूएसए से मंगा रहे हैं Yeah. अपना राइस। गॉट इट। यूएस से सर कीवी, अरे सर कीवी और वो कीवी का खा के ही बताओ मैं मैं। हेल्दी ऑर्गेनिक खा के ही, हाँ सॉरी सर मैंने इंटरमिटेंट क्लियर नहीं किया। इंटरमिटेंट फास्टिंग होता क्या है? इंटरमिटेंट फास्टिंग होता है एक ईटिंग विंडो होती है। इस ओके। ईटिंग विंडो में ऐसा होता है कि आप इस विंडो के अंदर आप सब कुछ खा सकते हैं। और एक होता है फास्टिंग विंडो कि जिसके अंदर आप कुछ नहीं खा सकते, कि यस। आपको तो मेनली आपको डिनर पे नहीं जाना है, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट नहीं करना है। तो जब आप दो आपके सॉल्टी मील आप नहीं करते हो, सो ऑब्वियसली आप सॉल्ट डेफिसिट हो जाते हो, आपका बीपी लो होता है। और ये सॉल्ट ओके। आप आपका ये सॉल्ट क्या होता है, जब आप नहीं सॉल्ट रिप्लेनिश कर रहे हो, आप मील नहीं खा रहे, आप मुंह बंद करके बैठे हो कि नहीं मुझे नहीं खाना है, तो आप क्या कर रहे राइट। हो? मैंने डिसाइड, मतलब मैडम एकदम सोच के बैठी कि आज मैं कुछ नहीं खाऊंगी। तो हाँ। अब ऑब्वियसली जब क्या होता है, जब आप नहीं खाते हो तो एग्जैक्टली आपकी बॉडी से एल्डोस्टेरोन हाई होता है। किडनी क्या करती है कि उसको बॉडी तो चलानी है, बॉडी के लिए मेन फंक्शन है लंग्स फंक्शन, हार्ट फंक्शनिंग एंड उसका एवरीथिंग इज जो फंक्शनल है वो ब्रेन फंक्शनिंग, दिस इज द इम्पोर्टेंट यस। फंक्शन। बट सो व्हाट, वो जब उनके लिए सोडियम या तो फिर वो बोन से लेते हैं तो बोन्स वीक होती है, या फिर सोडियम ओके। होता है कि रीएब्जॉर्प्शन होता है, एल्डोस्टेरोन ओके। हाई होता है। जब आपका एल्डोस्टेरोन हाई होता है तो आपका एपिनेफ्रिन और नेफ्रिन एंड कॉर्टिसोल, दे आर द हार्मोन्स, तो वो हाई होते हैं। जब आपका कॉर्टिसोल हाई होता है तो आपका मूड खराब होता है। जब मूड ओके। खराब होता है तो एग्जैक्टली कि मैडम इंटरमिटेंट फास्टिंग पे है एंड सर आए हैं तो सर बोल रहे हैं मैडम आज डिनर पे चलोगी? मैडम फास्टिंग पे है, क्या करूं मैं, मर जाऊं, मेरी फीलिंग नहीं है। गॉट इट। इट्स लाइक वो, मतलब ऐसा हो जाता है कि साला मैं तो आपके लिए पतली हो रही हूँ और आपको डिनर पे ले जाना है, मेरी फास्टिंग की कदर ही नहीं है आपको। सो एक्चुअली होता है क्या है, आपके मूड ऑफ रहते हैं, आपको पूरी दुनिया बुरी लगने लगती है, आपको नेगेटिविटी होने लगती है, आपको लगता है नहीं मेरे को भूख नहीं लगती है। अरे भूख तो नहीं लग रही है, जो आपके जो साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं ना वो दूसरे झेल वो रहे बहुत हैं। ज्यादा हो रहा है। वो दूसरों को पता राइट। चल रहा है कि आपका कॉर्टिसोल हाई है, आप नेगेटिव है, आपका वो है। सो आपको लाइफ के अंदर आज अब वी आर द लेमैन, हमको अपनी ऑफिस भी जाना है, घर भी संभालना है, यू हैव टू बी सो हमारा जो डाइट है वो लॉन्ग टर्म होना चाहिए, सस्टेनेबल होना चाहिए, लाइफस्टाइल होने चाहिए, राइट। एग्जैक्टली। कि अपना गोल है कि ये डाइट तो मैं फॉलो करूंगी तो मैं हमेशा फॉलो कर सकती हूँ, दिस इज द डाइट। एब्सोल्युटली। अब सस्टेनेबल डाइट वो होती है, इफ आई एम अ पायलट, अभी मेरा है कि मैं आज इधर हूँ कल इधर हूँ, तो मेरी डाइट मेरे अकॉर्डिंग होनी चाहिए, ना कि मैं एक सो कॉल्ड गूगल पे मैंने सर्च की है ये वाली फास्टिंग डाइट। आप आप एक एयर हॉस्टेस हो, आपका शेड्यूल अलग है, आपका डे टू डे लाइफस्टाइल अलग है, तो यस। आपका डाइट वैसा होना चाहिए जो आपके प्रोफेशन के साथ सस्टेन करे। मैं यदि कोई पर्सन आया उसको बोलूं भाई फास्टिंग करना है, वो सब छोड़ दे, अपनी नौकरी वोकरी और घर पे बैठ जा, मुझे नहीं हो फास्टिंग सकता करते। सर, फास्टिंग करेक्ट। कर। तो सर कमाना तो जरूरी है सर, एवरीबॉडी नोज। तो आपकी डाइट आपके प्रोफेशन से आपके उससे जुड़ी होनी चाहिए, इससे लॉन्ग टर्म होनी चाहिए। एंड वन थिंग, लाइफस्टाइल, आपका लाइफस्टाइल चेंज होना चाहिए। सर मेरे पास मील रिकॉल्स आते हैं, मॉर्निंग में फ्रूट खाया था, बाद में सैलेड खाया, रागी रोटी खाया, एंड डिनर में पनीर टिक्का, चिकन टिक्का, दाल मखनी, रोटी, 3 पैक बियर। क्या सर, तो मतलब आप कौन सी डाइट पे हो? सर जब आदमी सही डाइट बात पे है। होता है उसको लगता है कि मैंने सुबह तक डाइट की है ना, अभी रात को खाऊं नहीं क्या? चल जाएगा, तो हाँ। ऐसे नहीं होता है सर, आपका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन होना जरूरी है। जब तक आपका लाइफस्टाइल मॉडिफाइड नहीं होगा, आप कितनी भी डाइट कर लो, आप 4 कदम आगे चल के वापस 4 कदम पीछे आ जाओगे। सब हम लेकिन परफेक्ट। फिर
लेकिन फिर इंस्टाग्राम में पोस्ट कैसे करेंगे कि 20 आवर्स फास्टिंग और 18 आवर्स फास्टिंग, वो तो हो नहीं पाएगा ना फिर। हाँ सर, वो तो गलत हो जाएगा। वो तो चाहिए सर। मैम देयर समवन हु सेइंग दैट मुझे रात को बहुत लेट नींद आती है। अदिति, आई थिंक इसका आंसर आपने दे ही दिया कि अ, अदिति, फोन पे स्क्रॉल करना बंद करो और टाइम पे सोने को ट्राई करो। वाइट ओके, लाइट ऑफ दिस करके सो। दैट्स वैलिड। Yes. Hriday wants to ask, ma'am, what rating would you give a normal biscuit like Parle G in the context of someone running No a packaged lot food, lately? no packaged food, no processed food, sir. कुछ भी पैकेट जबरदस्त। नहीं, अपने अपने घर पे बनाया हुआ खाओ, अच्छा खाना खाओ। Low BP at high altitude. Oh, what वो can we do? हाँ, लो हाई एल्टीट्यूड के लिए कि आप सॉल्ट टैबलेट्स ले सकते हो। डिपेंड्स कि आपका लो बीपी कितना रहता है। जस्ट फर्स्ट टू Okay, आस्क डॉक्टर कि आप हाई एल्टीट्यूड पे जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं, एंड देन उसके right. रिकमेंडेड आपके इमरजेंसी मेडिसिन उसके साथ आपको जाना है। आप ये है कि आपके जो 3 मेन मील्स हैं, आपके ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, वो आप अच्छे से खाएं क्योंकि दे आर द सॉल्टी मील्स। और इन बिटवीन ड्यूरिंग के लिए मैंने आपको बोला है कि डेट्स और जो आप रेजिन्स या जो भी आप ड्राई फ्रूट्स लेके जा रहे हैं उसको आप थोड़ा सा रॉक सॉल्ट उस पर स्प्रिंकल कर ले और आप बीच में Okay, खाते रहें। जनरली हाई एल्टीट्यूड पे नहीं करते हैं, बट आप यदि नॉर्मल आपको अचानक यदि हाई एल्टीट्यूड फील हो, मतलब लाइक लो बीपी फील होता है, तो आप कॉफी ले सकते हैं। कॉफी से एक स्टिमुलेशन होता है एंड देन यू फील फ्रेश। बट हाई okay. एल्टीट्यूड पे कॉफी ये सबसे डिहाइड्रेशन के चांसेस रहते हैं, तो जनरली नॉट Absolutely. रिकमेंडेड। सो कॉफी आप डे टू डे में आप ले सकते हो, बट हाई एल्टीट्यूड के लिए सॉरी, एंड Okay. अदरवाइज आई थिंक डॉक्टर सजेस्ट बेटर, बट या न्यूट्रिशन के लिए आप एक सॉल्टी मील आप पूरे टाइम लेते रहो, द बेस्ट वे। Okay, मैम, वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। एक यस लास्ट सर। क्वेश्चन ले लेता हूँ बिकॉज ये मेरी जान ले लेगा, अदरवाइज इज अ गुड फ्रेंड केविन, ही इज आल्सो फ्रॉम मुंबई। सो केविन यस वांट्स टू नो, मैम, he wants to know someone has a sleeping disorder, how to cope up with that, बताइए इसको। सर, स्लीपिंग डिसऑर्डर, आप थोड़ा स्ट्रेस कम लीजिए, अच्छे से एक्सरसाइज कर लिए, मसल रिकवरी, इसमें भी आप एक बार अपना मेडिकल पैरामीटर्स चेक कराइए। इसमें भी यू हैव डेफिशिएंसी ऑफ मैग्नीशियम और कैल्शियम, सो डेफिशिएंसी कंप्लीट इनकम्प्लीट कीजिए। यू कैन टेक लाइक आपका मेलाटोनिन और कॉर्टिसोल आप चेक करवा सकते हैं। इसमें भी किसी को कॉर्टिसोल हाई रहता है तो भी लाइक थोड़ी सी चिंता की वजह से भी नींद नहीं आता है, राइट। सो एक्चुअली फर्स्ट वी हैव टू चेक कि आपका रूट कॉज क्या है, राइट। आपको नींद Okay. क्यों नहीं आ रही है, राइट। यदि आपको स्ट्रेस ज्यादा है तो स्ट्रेस को कम कीजिए, राइट। राइट। मैम अभी थोड़ा छोटे छोटे आंसर दीजिएगा बिकॉज आई एम सीइंग देयर लॉट ऑफ ओके इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस व्हिच आर देयर। हाउ ओके मच ओके बिफोर द वर्कआउट शुड यू ईट एंड इन व्हाट क्वांटिटी? वर्कआउट से पहले कितना क्वांटिटी, सर, कितना पहले? डिपेंड्स ऑन योर वर्कआउट, एंड यदि आपका वर्कआउट 1 आवर से ज्यादा है तो आप थोड़ा आप कॉम्प्लेक्स कार्ब ले सकते हैं, जो ऑलरेडी मैंने बोला है। आप एनी होममेड मील ब्रेकफास्ट ले सकते हो, पोहा ले सकते हो, उपमा ले सकते हो, रोटी ले सकते हो, एंड थेपला ले सकते हो, एनीथिंग, ब्रेड, पीनट बटर सैंडविच ले सकते हो। परफेक्ट सर। परफेक्ट। एक और है मैम, कमांडर रतूड़ी, ही इज अ वेरी सीनियर नेवल ऑफिसर, ही वांट्स टू नो व्हाट काइंड ऑफ डाइट यू रिकमेंड फॉर अ बैडमिंटन प्लेयर हु प्लेज अप टू 6 hours per day? Sir, we have to check your workout, your muscle fatigue, your muscle loss, your medical parameters, and accordingly, then we can give the diet, sir. As a Got it. sports diet is very specific, sir. And you have Got to it, be ma'am. आपका announcement भी होना चाहिए, आपका performance भी अच्छा होना चाहिए, sir. Obviously. So I'll suggest all the viewers, for anything specific, you can WhatsApp मैम, मैम का यहाँ पे not WhatsApp, Instagram में आप मैम को पिंग कर लीजिए, then she'll be able to guide. Which is better मैम, dry fruits or nuts? Sir, depends कि आपका कौन सा एनर्जी सिस्टम काम कर रहा है। If you are in running on the normal surface, तो you can replenish your fat, तो आप nuts ले सकते हैं। But high altitude पे आपको कार्ब की जरूरत होती है, तो you have to take dry fruits. Dry So fruits. depends on, again Awesome. I'm telling you, depends on our workout. तो हाई अल्टीट्यूड में हमें क्या ले जाना है एबीसी में, वो आप ही डिसाइड करेंगे और आप ही लाएंगे। Okay, sir. Thank you so much. Is it advisable to have light dinner post workout? मैम Light डिनर के dinner, मैम शाम को वर्कआउट किया, उसके बाद भूख ज्यादा लगेगी तो हेवी डिनर करने का मन करेगा, तो व्हाट शुड वी डू? अपना दाल राइस ना बेस्ट, दाल भात खा के खाते सो रहिए। जाओ।
बस कुछ if not possible to maintain particular diet during traveling and also cannot carry food, what simple food can be taken? सर आई एम टेलिंग यू, Korea. सस्टेनेबल नहीं है तो वो डाइट ही गलत है। वो डाइट ही क्या जो सस्टेनेबल ना हो। Again, good question, मैम। सुपर फूड जैसे हम बोलते हैं, कुट्टू आटा, रागी, मिलेट्स, सर इनके इंडियन बारे फूड में। है सर, सुपर ओके। फूड्स बहुत है सर। एक पूरा सेक्शन करना पड़ेगा उसके लिए। ऋषि, अगेन ही इज कमिंग फॉर EBC, wants to know बेस्ट वे टू कंज्यूम ग्रीन टी। मैम ये ग्रीन टी, ब्लैक टी, क्या टी, इनका बताइए थोड़ा, विच इज हेल्दियर। ग्रीन टी मैंने कभी किसी को दिया नहीं है डाइट में ग्रीन टी, बट ऐसा ओके। है कि दिल बहलाने के लिए बोलते हैं ना, कुछ तो डायलॉग है, सॉरी मुझे आता नहीं समझ गया, है। समझ गया। आई थिंक दे हैव अंडरस्टूड द पॉइंट। कि कुछ नहीं है तो ग्रीन टी पी लो। बिल्कुल। चलो, आई थिंक वी आर डन। मैम अंडर वेट है, वेट गेन टिप्स, वेट कैसे गेन करना है, ये भी तो लोग हैं मैम। अरे अच्छे से खाओ, जो भी मन भाता है अच्छे से खाओ। आप तो दुनिया के बहुत लकी इंसान हो जो ऐसा खा सकते हो। वेरी राइट। और सो हेल्दी वे आई से थिंक वेट गेन करो। मेन थिंग वेट गेन एंड वेट लॉस, आई डोंट वांट, व्हाट यू फील इज द बेस्ट। जितने भी स्विमर्स हैं, जिमनास्टिक है, सब अंडर वेट है। नथिंग, इफ यू आर फीलिंग फिट, एब्सोल्युटली फाइन, कैरी ऑन। ग्रेट। तो लुक्स पे ज्यादा नहीं जाना चाहिए कि लोग क्या बोल रहे हैं टाइप, द वे यू सेड। बिल्कुल। ग्रेट। कौन डिसाइड करेगा? हम डिसाइड करेंगे हम बहुत अच्छे हैं। ऑसम मैम। चलो मैम, आई थैंक यू थिंक वी सर। हैव ओवरशॉट बाय क्वाइट अ लॉट। थैंक यू सो मच, बहुत ही ज्यादा मजा आया। आई एम सो एक्साइटेड। अभी EBC में थैंक देयर यू बी सर। सो मेनी थिंग्स टू लर्न। नहीं मैम, रियली थैंक यू सो मच। great थैंक यू time, सर। and I'm sure everybody has learned a lot. Ma'am, over to you. थैंक यू सो मच एवरीवन कि आपने मेरे को सुना, बेयर किया। थैंक यू No, सो I'm मच। sure everybody has learned so many things from you, and we can see all the comments coming. And थैंक यू again, सो in मच। case people have questions, I know, ma'am, she's been very, very positive in all her responses. So, in case you want to ask, you can follow her on Instagram and, always keep asking her, and she'll be very happy to answer. And sir या also सर, will एनी help you टाइम सर। in that. Thank you so much, guys. थैंक यू सर। Great time we had. See you on EBC, ma'am. Bye bye. बाय, सी यू सर।